क्लास क्लास टॉपिक याद है किसी को? हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am, you're audible. यस, तो आप लोगों को टॉपिक याद है? मैंने आप लोगों को बोला था कि Good afternoon, एटलीस्ट ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून फिरोज। मैंने आप लोगों को बोला था कि टॉपिक आप लोग प्लीज थोड़ा सा पढ़िएगा, तो टॉपिक किसी ने पढ़ा है? मैं जानना चाह रही हूँ आप लोगों से। यार, किसी को टॉपिक का नाम याद है? एटलीस्ट मुझे इतना ही बता दो, मैंने क्या टॉपिक बोला था। मैडम वो मीनाक्षी? तो आपने टाइप्स ऑफ बिहेवियर के बारे में पढ़ाया था ना आपने लास्ट टाइप्स ऑफ बिहेवियर? नहीं नहीं, मैंने आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ने के लिए भी बोला था कि प्लीज पढ़िएगा इसको। मैम आपने डॉगमेटिक के ऊपर बोला था। डॉगमेटिक? नो, I think I have given a topic of a gender sensitization. I do remember very well. Even in the morning batch, I have asked everybody to study about a little bit about little bit about your gender sensitization, but I didn't get an answer from anybody in the class. Yes, ma'am. Well, okay, forget it. So किसी ने पढ़ा है तो बात कीजिएगा प्लीज, क्योंकि बिकॉज लाइक आज आपका ये लास्ट सेशन है ना, कि कल भी है क्लास? No, ma'am, last session आज। ये लास्ट सेशन है। सॉरी, सॉरी, कुछ कहा किसी ने? हाँ जी, कुछ कह रहे हो आप लोग? प्लीज बोल रहे हैं, अनम्यूट करके ठीक से बोलिए ताकि मुझे सुनाई दे आप लोग क्या कह रहे हैं। कोई कुछ नहीं कह रहा है? आगे चले। Yes, ma'am. लास्ट क्या किया था हमने? लास्ट टॉपिक बताइए। Ma'am, dogmatic. व्हाट डॉगमेटिक? डॉगमेटिक के आगे भी तो कुछ होगा। डॉगमेटिक स्टेटमेंट। Yes, ma'am, dogmatic statement. ओके, ठीक है। उसके अगला है अपील टू क्वेश्चनेबल अथॉरिटी। अपील टू क्वेश्चनेबल अथॉरिटी में it's something like that, somebody is come up with some certain statement, somebody make some certain statement, but we should know, we should, that person, whoever is making a statement, that person should be have an authority for making a statement. It's something like that. Okay, like XYZ, anybody from your class, like Meenakshi made a statement. Meenakshi said that cigarette smoking causes a lung cancer. Okay, if she said so, so did Meenakshi do any special research on it? Did she do any special study for that? Is she is she's an authority person to say such a thing? That is what is a questionable authority. Appeal to a questionable authority is like anybody, you have seen on your TV debates and something like that. A lot of things you have seen that people come and make statements. People come and say a lot of things. So, first of all, before giving a reaction to somebody's statement, we should try to understand, or we should know whether that person who is making a statement, whether that person is capable of making a statement or not. If that person who is saying something about which he himself or herself didn't know anything, or they are even not aware of it, what they are talking about, in that case what is the need to revert back such a person? Because that person is not at all having an authority to say that thing. So there is a no need of there is a no need of at all to react over to that. Do you feel? So this is what is a questionable authority. Understood, everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक एग्जाम्पल दीजिए। Yes, Ruchika, give one example. मैम इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं. इफ आई मेक अ स्टेटमेंट ऑन suppose we take example of political party and I raise a question on them that yes they do some corruption or something, so I don't have that authority, neither I have done any research on it. So this is, I guess, example of questionable authority, that I don't have authority to raise
the question on their work or their personality. Exactly, because you're not having any exact authority for doing that. You're not a person who is did any research about. You're not a journalist. You're not any activist. You're not a social worker that you did any research about that their work so that you can say that. Some person who is having authority, only that person can question the person who is in authority. Understood? Clear? Yes, ma'am. Next is non-swinter. Non-swinter, this term is referred to the statements which does not follow any fact, any argument. They are not having any logic and not having any reasoning behind it. These are the things which are completely irrelevant. If I make a statement, something like this. If you have a mole on above your lips, you are beautiful. How it sounds Ma'am, weird. weird, bizarre. This is a non-sequitur statement which is not logical, not reasonable. It is not having any fact into it. It is not having any argument into it, but we are just making. And a lot of such statements people do make. If you have a double chin, you're beautiful. You will get a job if you have a long nose. So the people who are having a short nose, they are not going to get a job. Excuse me. Understood, everybody? Yes, ma'am. एग्जाम्पल दीजिए आप लोगों को समझ में आ गया ना मैं क्या बोल रही हूँ सबको समझ में आ गया नॉन मैडम स्क्विटर स्टेटमेंट समझ में आई आप लोगों को मैडम आपकी Yes, यूनिट मेरे को ma'am. समझ में आ रही है, पर जो टॉपिक है ना आप उसको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? इट इज नॉन स्क्विटर स्टेटमेंट शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को जैसे मैंने पीछे पढ़ाया है हैस्टी जनरलाइजेशन हैस्टी प्रिडिक्शन स्टीरियोटाइप्स डॉगमेटिक स्टेटमेंट्स सटायर आयरनी नॉन स्क्विटर्स ये सब आ सकते हैं ये सब आपका शॉर्ट नोट्स में आ सकता है तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग अंडरस्टूड Yes, Okay, ma'am. ma'am. yes ma'am. हाँ जी प्लीज थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए एक दो मुझे जैसे मैंने आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए तो आप लोग भी मेरे को एक आधा एग्जाम्पल दे दो फिर आगे बढ़ते हैं एक आधा एग्जाम्पल दे दीजिए इस तरह से छुप के बैठे हैं काजल खुशी आर यू देयर Yes ma'am. हाँ तो बोलते Yes, क्यों नहीं हो ma'am. भाई आप लोग एग्जाम्पल दीजिए कोई नॉन स्क्विटर का जो ऐसे सुने होंगे बहुत सुने होंगे ऐसे Bunny rabbits are way cuter than chipmunks. हैं व्हाट समझ नहीं आया खुशी क्लियरली बोलिए Bunny rabbits are way cuter than chipmunks. हाँ सही है क्लियर है चलिए आगे बात करते हैं रैशनल और इरैशनल राइटिंग्स की या रैशनल और इरैशनल थिंकर्स के बारे में देखिए रैशनल थिंकर कौन होते हैं रैशनल थिंकर्स वो होते हैं जो कि लॉजिक रीजनिंग फैक्ट्स फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं वो किसी भी चीज की इंटरप्रिटेशन या किसी भी बात या किसी स्टेटमेंट किसी भी राइटिंग के बारे में जब इंटरप्रेट करने चाहते हैं तो देयर फोकस इज ऑन द लॉजिक ऑन द रीजनिंग ऑन द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल विद देम their findings are completely based on that irrational thinkers completely opposite to that they distort the reality they do misrepresentation or misinterpretation which involves the illogical ways of evaluating yourself others and the world around them so they become like bit discomfort intolerant demanding so they started judging people and rating people that is what is a irrational way understood rational or irrational Yes, ma'am. Yes, ma'am. clear to everybody so basically the rational people are those people who focus everything on
on logical base that okay, there is a must be a this logical behind it or something like that, this reasoning is behind that. These are the people who are they're having a rational thinking, and irrational thinking is completely opposite to that. They misinterpret and focus, and at the same time, irrational thinkers more focus on the emotions sometimes, which are misguided also, misinterpreted also. So they focus on such things. At the same time, being an irrational thinker, people blocks achieving their goals and purposes. It creates extreme emotional states in the people, which distract them, and it sometimes leads to a behavior which is harmful for themselves and for the others also. This is something, like this way. And basically, you know, we should know about the emotive behavior theory. This theory was proposed by the Dr. Albert Ellis. Albert Ellis. It is a clinical psychologist theory, the emotive behavior theory, in which they believe that the completely the thing is that emotive behavior theory, in which they proposed that sometimes irrational people want to be a sense of belongingness. They want feel love, they want an approval, they want to feel significant. That's why they sometimes do such things. But we should follow the rationalism. In the rationalism, they're always doing the right thing. They're selfless, they are logic, they are they're all findings and all things are based on the logic and reasoning. So these are the things that being differentiating among a rational and irrational thinking. So basically, the writers who follow the rational ways of writing, they are trying to curb the emotions. They are also using masses, basically to fulfill certain target. But the difference between a rational writer is that they actually want the masses to follow something which is fruitful for the everybody, which is beneficial for the everybody, because they are always doing the right thing. They are doing a logical and a reasonable things. They will not go for something which is destructive for anybody. But on the other hand, the writers who are following the irrational ways, they are sometimes are responsible for creating a lot of chaos in the society, and the criminalistic ways of the masses. Sometimes we see that the rewards, and sometimes there is a fights among the communities in our society. We see that there is so much unrest among the people in the different races and the different class or different societies, and that is all in a resultant of a such type of writings or the such type of speakers. And when you come up and say something which is hurts the feelings and the emotions of a certain group or certain cause or certain belief or certain person from the society, and they started creating a chaos in the society later on. But first of all, here we should again search for whether the person who is saying such things, whether he comes under a questionable authority or not. Without thinking that thing, the people started reacting to such things. Instead of that, a legal action must be taken against all those writers or the right work, all the speakers who are trying to create the curb the emotions of the people in an irrational manner in order to create a chaos in the society. But this is not being followed. But at least at the end of the day, if you are educated if enough to understand what is the difference between the things, you will not react to them. So that is the thing that we should be learned and educated about these things. Understood by everybody. Yes, ma'am. समझ में आया सबको रैशनल और इरैशनल? Yes, ma'am. Yes. जी मैम कोई समझ में आ गया। क्वेश्चन कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं आप लोग? सुमित कुछ एग्जाम्पल दीजिए अच्छा सा। मैडम नेशनल और इंटरनेशनल का। हाँ जी, ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो जाए, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो। कि मैम बस 1 मिनट सोच के बताता चलिए रुचिका, तब तक आप कुछ बताइए जब तक सुमित बता रहे हैं। Ma'am, in this case, we can take the example of that debate. Suppose we are having debate. So one is talking about the advantages of one thing, and other is talking about disadvantage. So if we take the example of rational,
So both the parties have their logical and reasonable points that they are suppose disadvantage team has put in some points, so the advantage team, after doing all their research and logics, clear their logics, so they can counter them with their reasonable point. So there is a reasonable conversation going on. So there Hmm. is a particular thing is happening. If we take the same example in irrational, so if advantage team has put in their point and the disadvantage team just said anything just to cut this point, so this might cause a fight between the teams that no, this Why is don't right. you take any live example? We've seen so many debates on our TV. Yes, ma'am. Why don't you take That, some example, live example? yeah, but that is very basic example. We, Okay. if we say that news channel fights, so it's very common because in that debates, most of the thing what I feel is illogical, just Irrational. irrational, Irrational. just to put blame on the other party or the other member who is the spokesperson from that party. So Hmm. that they are just uh, putting their points very illogically and और कुछ नहीं मिलता है तो they started yeah, blaming each yes, other on a personal level. yes, and in sometimes they fight also in the live debate only. So this is one example of irrational. Hmm. Nice. सुमित जी सोच लिया? सुमित, मैडम, मैं देखो समझ तो क्या हूँ, पर मैं एग्जाम्पल क्या दूँ ऐसा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप कोई भी एग्जाम्पल टीवी न्यूज का उठा के दे दीजिए, टीवी चैनल का उठा के दीजिए, जगह जगह आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाएंगे और आपको पता है 100% जनता हमारी जो है वो इनको फॉलो करती है। 99% भी नहीं बोलूंगी मैं, 100%। एक एग्जाम्पल मैडम मेरे मन में भी आ रहा है फिलहाल, जैसे कि अभी राम मंदिर बन रहा है, तो जो पुराने लोग हैं वो मानते हैं कि हाँ राम मंदिर जो राम जी थे वहां पर पैदा हुए थे, उनकी जन्मभूमि है, तो उस फैक्ट के हिसाब से वो बोलते हैं कि राम मंदिर वहीं पर होना चाहिए। जैसे पर आज वो तो रैशनल हो गया, और जैसे कि आज हमारे जैसे बच्चे, हमारी जनरेशन है, हमको नहीं पता, हम तो केवल पुराने लोग हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरह से हम ये इमोशन में चल रहे हैं कि हमारे राम की भूमि है तो हम मंदिर वहां पर होना चाहिए, तो एक तरह से इरेशनल हो गया। सही है ना मैडम? आपके पास कुछ लॉजिक नहीं है, आप बस हाँ फॉलो कर रहे हैं। जी। या राइट। ठीक है, तो अभी पीछे तक का सब क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैडम, अभी आगे चलें, पूरा क्लियर है मैडम। आगे चलें, चलिए। तो आगे आगे की बात करते हैं, सटायर एंड आयरनी। No, no. ठीक है, सटायर एंड आयरनी दो चीजें हैं जो हैंड टू हैंड चलती हैं, कभी अकेले नहीं मिलेंगी। जहां आयरनी होगी वहीं सटायर होगा। आयरनी है डार्क, ट्रेजेडी विच इज हैपनिंग, मॉरल इंडिग्नेशन, यू कैन से दैट, जो नहीं होना चाहिए, मॉरलिस्टिकली इनकरेक्ट चीजें। ओके। और लाइक ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, जो अनएथिकल हैं, इमोरलिस्टिक हैं, वो आयरनी और ट्रेजेडी का पार्ट है। ओके। वो आता है आयरनी में। सटायर, सटायर बजाय उन्हीं चीजों को हम जब डार्क मैनर में या ट्रेजेडी के फॉर्म में ना कह के उसको अम्यूजिंग वे में, हास्यप्रद तरीके से कहते हैं, तो वो कहलाता है सटायर। इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है व्यंग। सॉरी, व्यंग। यानी कि जो आयरनी हुई है, उस आयरनी को हास्यप्रद तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं, अम्यूजिंग वे में आप प्रेजेंट करते हैं, बट वहां पे एम क्या है? एम है कि वो जो इमोरलिस्टिक एक्ट किया जा रहा है उसे मॉरल इंडिग्नेशन में चेंज किया जाए। वहां जो अनएथिकल एक्ट हो रहा है उसे एथिकल एक्ट में चेंज किया जाए। जो भी डार्क ट्रेजेडी जैसा है उसे क्लियर किया जाए। बट वी आर सेइंग दिस थिंग इन अम्यूजिंग वे, इंस्टेड ऑफ सेइंग इन अ harsh word, in a harsh manner, we say these things in a like a amusing way, which laugh, make you laugh, and but at the end of the day make you think also. Understood?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. एग्जाम्पल दीजिए। समझ में आ गया, एग्जाम्पल दे दो मैम एक एक। मैम जैसे इलेक्ट्रिसिटी विभाग में कौन से भाग में? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जैसे मैम आजकल भ्रष्ट कॉपरेशन चल रहा है, तो करप्शन। उसी को, हाँ करप्शन चल रहा है, तो उसी को मैम अगर हम व्यंग के रूप में या कविता के रूप में जैसे कवि समारोह में कहते हैं वैसे कहा जाए तो स्टेयर हो गया, और ये आयरनी है, कैसा हो रहा यस मैम। है ना? इमोरल है ना ये तो, करप्शन तो इमोरल है। वेरी गुड, वेरी नाइस। रुचिका, कुछ एग्जाम्पल आएगा? मैम इसमें जैसे कि जो हमारे कॉमेडी शोज आते हैं, एक हमारा शो लाफ्टर चैलेंज कुछ एक शो आता है सोनी पे। सो इन दैट स्टैंड अप कॉमेडियंस व्हाट दे डू, इफ इज इट फॉर एनी एक्टर जो उनके सामने भी चाहे बैठा है, तो उसपे कुछ उस पे कमेंट करना उस वे में कि उसको भी बुरा ना लगे, और उसकी जो भी उसने कुछ इमोरल एक्ट किया है वो भी हम अपने बता ऑडियंस को दें, बता दें। ऑडियंस को भी बता दें, उसको भी बता दें। हाँ जी, मतलब उसको एज एन, अगर हम नॉर्मल बोलेंगे सरकास्टिक वे में तो उसको बुरा लगेगा, तो अगर हम जैसे सटायर इस वे में हम बोलेंगे तो उसको पता भी चल जाएगा उसका फॉल्ट, एंड बुरा भी नहीं लगेगा कि कॉमेडी तरीके से बता दिया है हमने। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली करेक्ट। हमने हंसते हंसते अपनी बात भी कह दी और सामने वाले को रियलाइज भी करवा दिया कि जी आप यहाँ पर जो ये कर रहे हैं दैट इज रॉन्ग। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं कि ये देखो, आपने शेक्सपियर का सुना होगा, इट से दैट अ मैन लर्न फ्रॉम वाइसेस नॉट फ्रॉम द वर्च्यू। ये प्रोवर्ब आपने सुना होगा। तो वो उसमें वो ऐसे एक्ट करते हैं कि सामने वाला जो है अम्यूज हो जाता है। ये जैसे आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लोग बहुत देखते हैं। कौन कौन देखता है? देखा मैम मैंने। आई फॉलो दिस यस शो मैम। फ्रॉम, जब से वो आया तब से मैं फॉलो करती, तो इसलिए पता चलता है उसमें जो व्यंग भी होते हैं तो हाँ, पता हाँ। चल जाता है तो कि वो वो एक्चुअली ना किस पे एक तरह से बोला है। व्यंगी है। वो पूरा है ही आयरनी को दिखाते हुए वो सटायर ही है एक तरह से। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे ऑफिस ऑफिस देखा होगा आप लोगों ने। ये भी शो का नाम शायद सुना होगा आपने। वो भी एक तरह का सटायर एंड आयरनी है। मैं पुराना नाम लूंगी तो आप लोगों को पता नहीं होगा, तो वो यू भी विल तो हो से सकता है दैट। मैडम, एक मे आई कम इन मैम। हाँ, मेगा मिन। राइट, राइट, राइट। पुराने में इट्स लाइक जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो आता था, जो मैंने देखा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। उनसे बेटर सटायर कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। चक्रधर जिस तरह से आपके पोएट हैं, जैसे अभी जो एग्जाम्पल दिया था पीयूष ने, वो पोएट्री का दिया था। तो चक्रधर है, वो एक सटायर पोएट माने जाते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। आगे चलें। मैडम एक डाउट है। जी जी, पूछे पूछे पूछे। अभी आपने एक वर्ड बोला सटायर, मतलब सटायर मतलब यही होता है ना कि आप इसके ऊपर सरकार। आप अभी व्यंग। बात कर रहे हैं, व्यंग। व्यंग, व्यंग। ओ, ओ, सटायर एंड आयरनी, इसी यही टॉपिक है आपका। ओ, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मैम इस पर अगला हमारे एग्जाम है में एजे लिखने का आएगा क्या? क्वेश्चन। आज ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको जितना भी पढ़ाया ना पिछली क्लास में भी, हैस्टी प्रेडिक्शन, हैस्टी जनरलाइजेशन, स्टीरियोटाइप, नॉन स्क्विटर, फलाना ढिमकाना, जो भी हमने पढ़ा है ना, इसमें सब में शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं लिखने के लिए। ठीक है, हो सकता है रैशनल इरेशनल थिंकिंग पे भी आपको लिखने के लिए आ जाए, शॉर्ट नोट लिख दीजिए। स्टीरियोटाइप पे लिख दीजिए, डॉगमेटिक स्टेटमेंट पे लिख दीजिए। इनके यस ऊपर मैम। आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, बहुत ही अगला जो यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट 9 जो है वो टेकिंग नोट्स। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंडेटरीली आएगा। ठीक है, टेकिंग नोट्स, नोट टेकिंग। हम लोग नोट्स बचपन में भी बनाते थे, है ना? नोट्स हम लोग लेते हैं, अपने में बनाते हैं नोट्स को। तो वो सब चीजें जो है, नोट्स जो नोट मेकिंग जो हम करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट मेकिंग हम अपने मतलब अपने लिए इजी, किसी चीज को जो हम इजी करने की कोशिश कर रहे होते हैं,
उसके लिए करते हैं, है ना। तो नोट मेकिंग बनाना भी अपने आप में क्या है कि एक तरह का एक क्वालिटी है, एक गुण है। समटाइम्स कोई बंदा इतने अच्छे नोट्स बनाता है कि हम सब उससे लेकर नोट्स को पढ़ लेते हैं। तो नोट मेकिंग के अंदर कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है और हमें वो सारी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि जब अगर नोट मेकिंग का क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर हम वो सारी टेक्निक्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी आप सुन रहे हैं या जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं उसको कम से कम योर रीडिंग शुड बी एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। ट्वाइस एंड थ्राइस बिकॉज क्योंकि ओसी में आपके सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे, आपको ये समझ में आएगा कौन सी इसमें से एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है और कौन सी इसमें से सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ आपके एसेंशियल पॉइंट्स को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन इनटू इट, सो ओनली देन यू कैन मेक अ डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड द सबऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन। देन first thing what we do in the note making, we can do the write down the abbreviations। अपने अपने acronyms बना सकते हैं, हम short forms में लिख सकते हैं। जैसे MBA होता है तो MBA का मतलब यूनिवर्सली सबको पता है कि MBA मीन्स द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। पर लेकिन हो सकता है मैं जो नोट्स मेरे पास जो सिस्टम जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसमें से कोई एक्रोनिम क्रिएट कर रही हूँ, तो मुझे वो यूनिवर्सल तो है नहीं है ना, जो सबको पता होगा, सबको नहीं पता है। तो आपने अगर कोई भी शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन में कुछ भी लिखते हैं तो जो भी लिख रहे हैं उसके साथ में ब्रैकेट में उसका फुल फॉर्म मेंशन करेंगे कि इसका एब्रिविएशन क्या है, क्योंकि जैसे आगे टेक्स्ट में उसको आप शॉर्ट में यूज करेंगे तो पहले से ही बंदे को पता होगा कि हाँ इसका एब्रिविएशन का फुल फॉर्म ये है, ताकि वहां पे वो जब एब्रिविएशन पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये है। पहले मैम उसका हम लोग लिख देंगे एब्रेविएशन। जी पहले ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका टेक्स्ट में बार बार यूज हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना, बार बार यस यूज हो मैम। रहा है, तो मैं क्या करूंगा आईटी लिख दिया और ब्रैकेट में लिख दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब बार बार कहीं पे डॉक्यूमेंटेशन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है तो यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में पूरा नहीं लिख के सिर्फ डीओसी लिखती हूँ और ब्रैकेट में साथ में लिख दूंगी डॉक्यूमेंटेशन, तो आगे पैरा में जहां पे भी डीओसी लिखा होगा बंदा अपने आप समझ में आएगा इसका मतलब है डॉक्यूमेंटेशन। जहां आईटी लिखा होगा सबको समझ में आ जाएगा इसका मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस मैम। अंडरस्टूड। तो ये यस मैम। स्टार्टिंग में ही लिखेंगे हम। ठीक है, तो एब्रीवेशंस यानी कि नोट मेकिंग में हम एब्रीवेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी एब्रीवेशंस जो है यूनिवर्सल एब्रीवेशंस नहीं है, ये सबको क्लियर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे उनके साथ में, उन एब्रीवेशंस के साथ में ब्रैकेट में पहले ही मेंशन कर देंगे कि हाँ जी ये जो है इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, राइट। अंडरस्टूड। Yes, ma'am. ऐसे गायब हो जाते कोई है ही नहीं है, हाँ ना तो बोलो यार, यस मैम। एटलीस्ट से yes or no whether you are getting or not. Okay, now next thing you what you can do, you can use the symbols. You can do the use symbols. आप लोग अलग अलग तरह के symbols का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम यूज करते हैं हमारा ट्राइंगल बना दिया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ ट्राइंगल आई मेक अ ट्राइंगल, सर्कल, like different shapes and with the arrows and all, single arrows, double arrows, sometimes used like this way. Different shapes can be used for, instead of writing the word or instead of writing something, we use the symbols. Okay. यस मैम। Okay, now third thing, always remember that there is always a synchronological order. There is a order. You have to organize the material, whatever the information you are having with yourself, you have to organize the information. That is important. You Yes, have ma'am. to organize the information what you're having with yourself. That is very important. Now, how you can do that? You can use it with the figures. You can show the contrast. You can use the tables like you make a table. One side you are showing a comparative and another side you are showing a what is a discomparative, differentiative table. So you can represent your data in the form of the tables, in the form of lists, in the form of the figures, so that it become an easier to memorize. It do happen na, it become easier, you can easily learn it, you can easily by heart it. Yes, ma'am. So this is another technique of
presenting in data in the form of the tables, listings, folders, figures. So easy to memorize. Okay, then another technique you can use of the technique of a flow chart. Everybody, you from IT background, everybody knows what is flow chart. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So give example. What is flow chart? मैम सीक्वेंस हाँ काजल बोलिए. मैम जैसे सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप हम कैसे फॉलो करते हैं जैसे इंस्ट्रक्शन लाइक वही तो मैं पूछ रही हूँ ना. एक बता दीजिए ना, वो एक एग्जाम्पल देके बता दो ना, सबको क्लियर हो जाएगा. किसी भी एक चीज का एग्जाम्पल ले लो और एग्जाम्पल के थ्रू बता दो. मैम जैसे कि हम जब कोई प्रोग्राम करते हैं हमारे आईटी में, तो उसमें जैसे कुछ उससे पहले हमारे उसकी एक फ्लो चार्ट लिखा होता है कि इस टॉपिक में हमारा ये हायरार्की हमारा चलता है, तो उसमें जो भी स्टेटमेंट्स होते जो हायरार्की भी मतलब हायरार्की मतलब जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हाँ सीक्वेंस जी 1 2 3 फॉलो करोगे उसको हायरार्की बोलते हैं. हाँ, तो मतलब जैसे कि पहले ये स्टेटमेंट होगी, तो उसमें अगर ये नहीं है तो फिर इस फ्लो में जाएगा, तो वो एक पूरा फ्लो चार्ट हमारा एल्गोरिथम का बना होता है, तो जी. ये एक हमारे फ्लो चार्ट में आ सकता है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. ठीक है, अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी. यस मैम. हाँ जी, मीनाक्षी कुछ कह रहे हैं. मैम मैं जैसे एग्जांपल बोलती हूँ, जैसे मैम हम टूरिज्म इंडस्ट्री में आइटनरीज प्रिपेयर करते हैं किसी पर्सन को ट्रैवल हाँ, कराने के लिए, तो बहुत उसको बढ़िया, बहुत बढ़िया. हाँ उसे प्रिपेयर करने के लिए एक फ्लो चार्ट होता है कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे पास प्री रिक्विजिट है, और अदर थिंग जो हमें कस्टमर से या फिर जो हमारा टूरिस्ट है उससे ग्रैब करनी है, एंड देन उसको प्रिपेयर करके एक फ्लो चार्ट के वे में हमें उसका पूरा रूट तैयार करना होता है. वेरी नाइस एग्जाम्पल मीनाक्षी. तो फ्लो चार्ट सबको समझ में आता है, तो हम अपने डेट नोट मेकिंग को फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज योर ट्री डायग्राम्स. ट्री डायग्राम सबको पता है. ट्री डायग्राम क्या होता है सबको पता है. हाँ जी, हाँ ना बोलिए. ट्री डायग्राम सबको पता है. नहीं मैडम, पता तो नहीं है, पर नाम से तो ऐसा लगता है साइंस जैसे में कि पढ़े थे क्या? नो मैम. ट्री ट्री पता. ट्री देखिए, ट्री. ट्री में क्या होता, आप लोगों ने सबने अभी, अच्छा हाँ फर्स्ट सेमेस्टर ही तो है. कोई नहीं, कोई नहीं. चलो मैं बता देती हूँ. वो आईटी का सोच के ना माइंड में ऐसा रहता है कि नहीं इनको सब पता है करके. तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट पता है. ट्री देखे, हम लोगों ने ट्री देखा है ना सबने. यस मैम. यस मैम. नॉर्मल यस पेड़ हमने मैम. सबने देखा है. ठीक है, नॉर्मल पेड़ जो होता है उसकी रूट होती है जो बहुत गहरी होती है. यस मैम. बड़े बड़े जो ट्रीज हमने देखे होंगे बरगद का या फिर पीपल का, हाँ. उनकी बहुत गहरी एक रूट होती है. ठीक है, उस रूट में हाँ. से आगे आपने देखा होगा कभी कभी जो काफी ट्री सारी होता है वो ब्रांचेस होती बाइफ्रिकेट हो जाता है ना, दो में ऐसे बाइफ्रिकेट हो जाता है. फिर उसके बाद वो आगे बहुत सारी उसकी रूट्स एंड बहुत सारी उसकी आगे शूट्स पैदा हो जाती हैं. बहुत सारी उसकी शाखाएं होती हैं. यस मैम. होती है ना. तो वैसे ही तुम्हारा ट्री डायग्राम है. ट्री डायग्राम में क्या होता है, एक नोड होती है, उस नोड के आगे दो, उसके आगे सब नोड्स हो सकते हैं. फिर उन दो सब नोड्स के आगे चार सब नोड हो गए, है ना. क्योंकि बिकॉज हर नोड के दो, मतलब एक स्टार्टिंग नोड हुई वो रूट नोड हो गई, रूट नोड से दो निकले, आगे उन दो के दो दो हो गए. फिर ये हमेशा क्यूमुलेटिव में चलता है, जैसे दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, ऐसे चलेगा. ऐसे रूट जैसा ही ट्री होता है, तो मैडम. बिल्कुल वैसा ही शेप में आप इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे. जैसे मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, आपके दादाजी, ठीक है. मैम आपके जनरेशन दादा, एक एग्जांपल दे रही हूँ, उससे इजीली समझ में आ जाएगा कि ट्री क्या है. जैसे मान लीजिए आपके दादाजी, मैडम मैं ठीक समझ है. गया हूँ. आपके दादाजी के तीन पुत्र, अब तीन पुत्रों के आगे दो दो और पुत्र, समझ में आया. यस यस मैम. मैम. क्लियर है सबको. जी मैडम, यस समझ में आ मैम. गया. वेरी नाइस. तो यानी कि जब हम नोट्स बना रहे हैं तो ये सारी टेक्निक्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये सारी जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई है, चाहे वो आपकी जो है शॉर्ट शॉर्ट एक्रोनिम्स की हो, चाहे वो आपकी चाहे वो शॉर्ट आपके एक्रोनिम्स की हो,
चाहे वो शॉर्ट आपके सिंबल्स की हो, चाहे टेबल्स की हो, लिस्टिंग हो, फोल्डर हो, फ्लो चार्ट हो, ट्री डायग्राम हो। ओके, अंडरस्टूड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो यानी कि नोट मेकिंग पे क्वेश्चन जरूर आएगा, नोट मेकिंग पे क्वेश्चन जरूर आएगा। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, तो इसलिए प्लीज नोट मेकिंग को अच्छे से आप जो है पढ़ लीजिएगा। अंडरस्टूड। यस मैम। मैडम एक डाउट है। Yes, ma'am. हाँ जी, बोलिए। मैडम नोट मेकिंग और फ्लो चार्ट सिमिलर है क्या? नोट में फ्लो चार्ट वन ऑफ द टेक्निक है नोट मेकिंग के लिए। फ्लो चार्ट स्टार्ट टू एंड के लिए होता है ना? आपका जो ये है, अभी मैंने आपको ये सब टेक्निक्स बताई हैं कि इस तरह से नोट मेकिंग आप कर सकते हैं। नोट मेकिंग को फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ट्री डायग्राम भी यूज करके कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आप कर सकते हैं इस तरह से। ये ओके ओके तन्वी मैडम, गोयल समझ कोई गया। है आपकी क्लास में क्या? क्योंकि ये अनवेरिफाइड दिखा रहा है मुझे। समवन वांट्स टू ज्वाइन दिस कॉल अनवेरिफाइड। हम्म। No, I हाँ don't जी। know. तो ये मैं वही इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग एवरीबॉडी थे कि ये अनवेरिफाइड दिखा रहा है ऑलरेडी। तो आई शुड डिनाई द एंट्री ना। मैम क्या पता उसको कुछ पूछना हो आप। ओके, आई एडमिट। तन्वी, यू जस्ट ज्वाइन। हेलो, तन्वी गोयल। तन्वी, अनम्यूट योर माइक। शी इज नॉट इवन अनम्यूटिंग द माइक। Okay, until unless not creating chaos. Okay, understood everybody now how to do a note making? Yes, ma'am. Okay, यस मैम। चलिए। तो नेक्स्ट है आपका समरी। समरी राइटिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। राइट अ समरी। अच्छा, पहले आप लोग मुझे बताइए कि अभी रिसेंट में आपने कोई मूवी देखा हो, कोई कोई बुक पढ़ा हो, कोई वेब सीरीज देखा हो, आप लोग बताइए। हाँ जी, बोलिए पंकज। नाम बताइए, जो भी आपने देखा है उसका कुछ नाम होगा ना। टाइटल, टॉपिक, सेंटेंस, सेंट्रल थीम। मनी ईस्ट मैम, मनी ईस्ट। मनी हेस्ट। और कोई? कासा द पेपल। हाँ। ओके। और कोई बताएगा मनी हेस्ट के अलावा? बोलोगे ही नहीं ना कि माइक अनम्यूट करके तुम लोग। मतलब मैं स्पेशली नाम लूंगी किसी का तो बोलेंगे, वरना ये मैडम अभी सोते तो रहे। नई मूवी देखते, नई वेब सीरीज। नहीं, हाँ आप फिलहाल बाकी लोग एनीमे जो वगैरह देखे वो देखते हैं तो जो। बताएंगे ना। जो देखे हैं वो तो एटलीस्ट बताए ना। एक मैंने पुराने टाइम पर मैडम एक मूवी देखी थी और काफी अच्छी थी। वॉल ई करके एक रोबोट रहता है उसके अंदर, बहुत अच्छा वॉल कैरेक्टर ई। है वो। वॉल ई। ओके। एनिमेशन मूवी थी वो, तो एनिमेशन मूवी है हाँ वो। हाँ, बहुत बढ़िया। कोई और बोलेगा कुछ और? ये बाकी लोग कुछ नहीं करते हैं। मैम फॉर हाँ जी, महेंद्र क्या कह रहे तो हैं? कर बाकी सारे। मैम ड्रेसियम टूल है। ओके। अभी कोई बताएगा ये जो सब आप लोग बता रहे हैं इसमें कुछ है ऐसा, लाइक कोई साइंटिफिक हो, लॉजिकल हो, इसमें से कुछ देखा है आपने? हाँ मैम, मनी इसमें सारा माइंड गेम है, मतलब प्लानिंग से जरा ये समरी सब बता दीजिए मुझे मनी हेस्ट की प्लीज। मुझे क्या, समझ। पूरी क्लास को बताइए। हाँ जी प्लीज, क्या कहानी है, मतलब क्या स्टोरी है? मैम बस कुछ टीम बना के, लड़के लड़कियों की टीम होती है, वो बस रॉबरी करते हैं, लेकिन माइंड रॉबरी होती है उसमें। मतलब सारा कुछ पहले से ही प्लान्ड होता है सब, कि कब हम्म। कौन सा एक्शन लेना है, कौन सा नहीं लेना। एक हम्म। मास्टरमाइंड होता है, प्रोफेसर उनका लीडर, वही हम्म। सारी गेम प्लान करता है और फिर हम्म। उनको अपने हिसाब से बताता है क्या कब क्या करना है। बस वो बैंक में रॉबरी करते हैं, बहुत बड़े बैंक में। बस यही हम्म। दिखा। और उन बैंक वालों को मतलब सबक सिखाने के लिए कि पैसे मतलब कि तुम्हारे पास बहुत नाजायज है, मतलब कि पब्लिक के पैसे है ये।
जो हम्म, तुम ऐसे कुछ है, मतलब थीम उसकी यही है कि सबक सिखाना बैंक वालों को। अच्छा, बैंक वालों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? पता नहीं, नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ था, ऐसा ही कुछ सबक था को, मतलब। ऐसा है। सबक नहीं सिखाना था, उसका मेन मोटिव ये था कि वो अपने पापा का सपना पूरा करना चाहता था। उसके पापा डाका मारना चाहते थे बैंक में सबसे बड़ा, और वो इतिहास रचना चाहते थे। उसके पापा पर मर गए थे उससे पहले ही। अच्छा। अच्छा, हाँ मैम, इसमें ये भाई सही बोल रहा है। कौन है ये? भाई मैं हूँ सुमित। सुमित ठाकुर, नहीं सुमित पवार। सुमित पवार, ओके भाई। सही, नहीं सही बात है। ये भी बात है, ये भी, हाँ उनके पापा थे। हाँ। भाई का भी था सपना, पापा का भी ऐसा ही था। भाई का दूसरा ये बैंक कौन है? लूटने का किसके सपना था। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है? मैम ये पॉलिटिक्स चल रहा है ना आजकल, वोट्स। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि समरी बताइए, तो आपने जो भी आपने ये देखा, ये कितने घंटे का था? मनी हेस्ट का जो आपने सीरीज देखा, कितने घंटे का था? हाँ जी, मैम जीतू। इसके टोटल 5 सीजन है, और हर एक सीजन में लगभग 8 से 9 एपिसोड। एक मुझे बताइए, एक एपिसोड कितने घंटे का होगा कम से कम? एक 40 एपिसोड मिनट लगभग और। 1 आवर? हाँ, एक घंटे 180। से ऊपर का है सारे एपिसोड। हाँ हाँ, तो और अभी 50 घंटे मैंने, मान लो। चलो मान लिया 1 घंटा, मान लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो अब जैसे पाँच आप लोगों ने बोला 1 आवर, तो अब आप ये देखिए, आपने मुझे ये जो समरी बताई, जो मुझे मोटा मोटा उसका सेंट्रल थीम समझाया, कितनी देर लगी आप लोगों को? मुश्किल से 2 मिनट। हार्डली आपने 2 मिनट 5 मिनट कह ले, इससे ज्यादा तो नहीं लिया। नहीं तो क्या आपने एग्जैक्ट वैसे डायलॉग्स बोले? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं बोले, इनडायरेक्टली क्या हमने आपको आपने समझाया। क्या क्या आपने उसमें जो जैसा 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 जो जो को बंदा कर रहा था, जो जो एक डायलॉग बोल रहा था, क्या वैसा ही वैसा कुछ बोल रहे हैं आप लोग? नहीं, केवल स्टोरी लाइन में कब बताइए। एग्जैक्टली तो यही होती है समरी। समरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? जब भी आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, या कोई मूवी देख रहे हैं, या कोई भी चीज है, देखिए, तो अगर मैं उसे समराइज करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या है कि मैं उसे दोबारा दोबारा पढ़ूं, कम से कम उसको मिनिमम आई शुड read at least 20 to 25 times, because it is very important, because जब तक मेरे को नहीं समझ में आएगा वो, जब उसका सेंट्रल थीम, उसकी एसेंशियल इंफॉर्मेशन मैं ग्रैब नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसे समराइज भी नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, पैराफ्रेजिंग, जो अब आप ही ने किया। पैराफ्रेजिंग का मतलब है सामने वाले ने जो बात किया है, उसी को रीस्टेट करना, उसको अपने शब्दों में कहना। पैराफ्रेजिंग सिंपली मीन restating the text in your own words. We are not saying the same thing in the same dialogues of the person who was on the camera, or who was the main protagonist of the story, but instead of that, we are just paraphrasing, means like restating the statement in our own words. It means we are just restating the things in our own words. Okay, understood? यस मैम। यस मैम। यस सर। Okay. मैडम इसको क्या बोलेंगे, रीपैराग्राफिंग? Re पैराफ्रेजिंग। No, no, paraphrasing, इसको हम पैराफ्रेसिंग। कहते हैं ओके। paraphrasing. When we are restating something in our own words, that is known as paraphrasing. जैसे पैराग्राफ था, उसको हमने फिर से बोल रहे हैं, पैराफ्रेजिंग कर रहे हैं, मतलब दोबारा से उसको रीस्टेट कर रहे हैं, जो सामने वाला ऑलरेडी बोल चुका है, उसको मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ, दैट इज पैराफ्रेजिंग। तो समरी लिखते वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है पैराफ्रेजिंग। ठीक है, तो जब भी मैं समरी लिखने जा रहा हूँ, कुछ टिप्स फॉलो करूँ। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि उसको, जो भी टेक्स्ट है मेरा, उसको थोड़ा पढ़ लूं 1 2 बार उसको अच्छे से, ताकि उसका जो सेंट्रल आइडिया है वो मुझे क्लियर हो जाए अच्छे से। ये बहुत जरूरी है, उसका मेन आइडिया मेरे को नहीं पता होगा तो मैं कैसे उसको समराइज कर पाऊंगा। दूसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मुझे ना रीडर्स के शू में घुसना होगा। मतलब मुझे थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा कि मैं किस तरह की ऑडियंस को बताने जा रहा हूँ। अभी जैसे अभी आपने एकदम से हिंदी में फटाफट फटाफट मुझे बता दिया, मुझे हिंदी आती है, ठीक है। somebody is like from a some certain place where the people didn't understand Hindi. Now you have to make them understand in that vernacular language, the mix of Hindi and mix of English. In that case,
आपको जो लैंग्वेज की पैराफ्रेजिंग है उस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो हमें ये देखते हुए पैराफ्रेजिंग करनी होनी चाहिए कि मैं किस तरह की ऑडियंस को कैटर करने जा रहा हूँ। जिनको पैराफ्रेज करने जा रहा हूँ उनको वो लैंग्वेजेस क्लियर हो रही है, मेरे वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं, उनको समझ में आ पा रहा है मैं एक्चुअली में बोल क्या रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? अपने आप को रीडर के शूज में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। यस ठीक है, एक स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए। 1 2 3 इट्स गोइंग ऑन, इट्स लाइक दिस वे। ओके, एक स्मूथ सेलिंग होना चाहिए, दैट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इट इज गोइंग ऑन लाइक दिस वे। ओके मैम। अंडरस्टूड? एंड देन यू नो व्हाट द बेसिक थिंग्स नाउ। ये हमने टिप्स बताया आपको कि ये टिप्स फॉलो करने हैं। अब फाइनली मैं जब समराइज करने जा रहा हूँ, मेरी समरी कुड बी इन ओरल। इट जैसे अभी आप लोगों ने ओरल बताया, आप लोगों ने सब कुछ है ना, तो वो समरी ओरल किया आपने। whether my summary is oral, whether it is dramatical, whether it is artistical, whether it is visual, physical, or musical, we have to divide into the three major parts, and these three major parts are like keeping, deleting, paraphrasing. Now, what do you understand by this? Keeping, deleting, paraphrasing. What do you understood by this thing? See, what do we mean by all this? Keeping, deleting, phrase. So, keeping. For keeping something, keeping is having the essential information of a text. That all the content, which is an essential information part, will come into the keeping. Now deleting, which is just the subordinate or the supporting information, the supporting details of the summary. So, okay, we will this all that information will comes under a deleting. Now final step is paraphrasing, which means that now you will say the keeping part, the essential information in your own words. Your your summary should be at least 10 to 25% of the original text length. It must be. Okay, remember this thing. Understood? This is how you are going to write down your summary. यस मैम। Yes, ma'am. Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई डाउट? यस मैम। नो 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 डाउट। बोलिए जीतू, क्या डाउट है? नहीं मैम, मतलब यस मैम, क्लियर है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। तो कीपिंग, डिलीटिंग, पैराफ्रेजिंग तीन भागों में हम इसे बांटते हैं हमेशा। कीपिंग के अब के अंदर सारी जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। डिलीटिंग में वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि नॉन एसेंशियल है, जिस जो कि जो सपोर्टिंग फैक्ट्स है तो उनको हटा सकते हैं हम। और पैराफ्रेजिंग के अंदर जो है, हमने उस भाषा को जो कीपिंग में हमने इंफॉर्मेशन रखी है उसको हम पैराफ्रेज करते हैं, यानी अपने शब्दों में कहते हैं। आप जो भी समरी करने जा रहे हैं उसका 10 से 25% मतलब जो होना चाहिए, जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट था एटलीस्ट उसका वो कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। अगर ओरिजिनल टेक्स्ट तुम्हारा जो है वो अगर तुम्हारा हम मान के चलते हैं 5 पेजेस है, तो यानी कि आप जो बताएंगे वो सिर्फ 10 to 25% होना चाहिए उस लेंथ के। तो यानी कि टोटल लेंथ का 10 to 25% निकाल लेंगे आप, उस हिसाब से समराइज करेंगे। ये नहीं है कि अगर पूरा ही सब कुछ जो लिखा हुआ है पैराफ्रेज करके लिख दिया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। यस मैम। 100% जो भी आपने पढ़ा है उसका 10 to 25% लेंथ में आपने समराइज करना है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस मैम। ये तो हुआ कि हमने समरी लिखने का मतलब समरी को वो करने का, डिविडेशंस करने का। अब इसमें हाइलाइटिंग सम किन चीजों की जो ट्रिक्स फॉलो करते हैं वो क्या है, हाइलाइटिंग टेक्निक्स के ट्रिक्स क्या है, तो उसमें आती है टेक्स्ट फीचर्स, वोकेबलरी, टॉपिक सेंटेंस, रिपोर्टर का नोट और ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, अब सबसे पहले टेक्स्ट के फीचर्स में हम लोग देखते हैं टाइटल, सब टाइटल, कलरिंग, बोल्ड, मार्जिन, ये सब क्या है आपके, ये सब टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो भी उसके अंदर लिख रहे हैं आप उसका इंफॉर्मेशन है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? एवरीबडी अंडरस्टूड ना? Yes, ma'am. यस मैम। vocabulary में it is like a what sort of a words I'm using. Again,
go to the last thing I have told you, that you have to put yourself into the reader's shoes, that what audience I'm going to cater. If my audience is from a high literate class, I can use the difficult vocabulary also, which is understandable. If I said the word nephomanic over here, nobody will able to come to understand what is nephomania or a nephomanic, because I know that my audience is not that much having a good vocabulary. So I shouldn't use that sort of a vocabulary which is not understandable by everybody. So we'll have to use the layman's language to make them understand. And at the same time, the summary must be in a very simple word. But in case of your vocabulary, the important vocabulary, the which is gives the preview, you know, preview to the audience, they can easily imagine the things you talking about. So that's the way the vocabulary has to be used. Clear है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hmm. टॉपिक सेंटेंस, नाउ टॉपिक सेंटेंस एवरीबॉडी नोज कि वो आपका सेंट्रल थीम है। सेंट्रल थीम को आपने पैराफ्रेज करना है अपने शब्दों में। तो टॉपिक क्या सेंटेंस आपका जो है, जो आपका सेंट्रल थीम है। लास्ट में रिपोर्टर्स के नोट, रिपोर्टर्स के नोट्स में कुछ भी नहीं करना होता है। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं आंसर्स, है ना। जो क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं आप लोगों से, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये जो होते हैं वो समरी में ही अवेलेबल होते हैं सारे आपके। आपको कहीं और से वो लेकर नहीं आने, समरी में ही वो सारे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। लास्ट इज ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर्स लाइक कि आपने कैसे सिंक्रोनाइजेशनली आपने प्रेजेंट किया है उसको। स्लाइड शो यूज कर सकते हैं, उसके अंदर अलग अलग तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लाइड शोज में भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, है ना। तो आपने फाइनली उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया है, तो ये दिस इज यू कैन मेक अ पावर, दीज आर द पावरफुल टूल्स फॉर राइटिंग अ गुड समरी। अंडरस्टूड? Understood, ma'am. Yes, ma'am. वेरी नाइस। तो कोई डाउट तो है अभी समरी को लेकर? No, ma'am. किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। हाँ जी, कोई डाउट है किसी का भी तो प्लीज बोलिए। मैम अगर समरी का क्वेश्चन आता है तो जी बिल्कुल आएगा उसका अगर क्वेश्चन। कुछ पूछा जाता है उसमें से तो हमको सारा कुछ उसी के जो अंदर से ही मैंने मिलेगा। अभी आपको ये प्रोसीजर हाँ बिल्कुल 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 सब कुछ उसी में ही मिलेगा आपको। पर लेकिन मैंने जैसे आपको प्रोसीजर बताया वो आपको फॉलो करना है, कीपिंग, डिलीटिंग, पैराफ्रेजिंग का। और ये टूल्स का इस्तेमाल करते हुए, मतलब टेक्स्ट फीचर्स, वोकेबलरी और ये सब। तो ये दिखाते हुए आपने समरी को लिखना है, उसको हाईलाइट भी करेंगे आप। मैडम एग्जाम के लिए कुछ प्रिपरेशन के लिए आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नोट्स पे आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये जितने टेक्निक्स बताए वो सारे लिख देना। आपको समरी जरूर लिखने के लिए आएगा एक, तो समरी में भी ये सारे टेक्निक्स जो है ये लिख दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको भी मैंने जो भी पढ़ाया है, जैसे कि जनरलाइजेशंस को लेके, स्टीरियोटाइप्स को लेके, तो ये सब आपको शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए आ सकते हैं। तो इनको एक बार आप गो थ्रू हो चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। बस मैम अगर आपको मेन उसका थीम, आपको मीनिंग उसका पता होना चाहिए, रेस्ट यू कैन डू। मैम अगर आप कोई नहीं बोलो। हाँ जी मैम आपने कहा था कि आप एंड ऑफ द जो सेशन होगा उसमें आप नोट्स प्रोवाइड करवाओगे। हाँ, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। मैं ग्रुप में नोट्स, ये जो ग्रुप आप लोगों ने बनाया हुआ है, इसी में पीडीएफ बना के डाल दूंगी। आई एम नॉट इन दैट ग्रुप। तो आप लोग प्लीज लिंक ले लीजिए ताकि आप भी ग्रुप में आ जाएं। यस प्लीज, आप लोग जो जोन सा ग्रुप मैम कह रही हैं आप प्लीज उसका लिंक भेज काजल दीजिए। लिंक शेयर कर दो ग्रुप का, आप Yes, जो है ma'am. लिंक शेयर कर दो। मैम अगर हमें काजल लिंक एग्जाम का शेयर कर दे रही है, आप सॉरी रुचिका, आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। ओके मैम हाँ एक जी तो बात सुमित और पूछनी बोलिए। थी। हाँ जी हाँ अगर जी हमें एग्जाम का पैटर्न समझना हो तो क्या हम उसके लिए हम लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसने रोका है। पैटर्न सेम होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पिछले 2-4 पेपर उठा के पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि नोट्स पे क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट्स पे क्वेश्चन है। बिच कुछ बाकी आपके फिलिप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, आपके ग्रामर के टेस्ट के लिए। अगर मैं तुम्हें दे दूं
पूरा क्वेश्चन पे बता दो ये ऐसे हैं? सही बात कैसे है। मतलब आप बिल्कुल बच्चों से बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अगर कुछ नहीं होगा मैम मेरे वो पास पड़ा हुआ तो मैं तो भी डाल दूंगी, कोई इशू नहीं। मैं समझ गई पीयूष तुम्हारी बात कि तुम चाह रहे हो कि एक डेमो कॉपी तुम्हें मिल जाए। अगर मेरे पास कुछ पड़ा होगा तो मैं वो भी ग्रुप में डाल दूंगी। ओके, डोंट वरी, मेरे पास होगा तो आई विल यस मैम अगर डेफिनेटली होगा शेयर, तो डाल मुझे कुछ देगी, करना उसी नहीं टाइप है। से हम लोग अपना प्रैक्टिस कर हाँ कर श्योर बनाएंगे। बच्चे, श्योर श्योर श्योर, कोई इशू नहीं है। मेरे मैं पास होगा मैं जरूर डाल दूंगी। मैम हम एग्जाम देंगे और हमारा हाँ एग्जाम जी। चेक तो आप ही करोगे ना? नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता? होता है। नहीं होता, असाइनमेंट्स जरूर आपके हो सकते हैं कि आएंगे, बट एग्जाम ऐसा नहीं होता है। असाइनमेंट मैडम मैंने बहुत मेहनत से बनाया है अच्छे क्वेश्चन। चलिए, मैम असाइनमेंट में पास सब कर मेहनत दीजिएगा। आप लोग सब इतने मेहनत से बनाते हैं ना, वो जब मैं चेक करती हूँ वो समझ में आ जाता है मैडम कि मैंने तो आप लोग क्वेश्चन भी कितने लिखे हैं पता है मेहनत पूरे से पूरे। बनाते हैं आप लोग। चलिए चलिए, बस हो गया डिस्कशन इसके बारे में, वो अभी पहला आगे वाला चलते क्वेश्चन था हैं। ना मैडम, कितना बड़ा पैराग्राफ था, मैंने वो भी लिखा है मैडम पूरा मैंने। वो लिखने वो की तो जरूरत सबने नहीं लिखा है होती, भाई। वो नहीं लिखने की जरूरत होती है जब आपने साथ में क्वेश्चन पेपर अटैच किया तो। नहीं चलिए क्वेश्चन छोड़ पेपर दीजिए वो अभी इसको। अब आगे चलिए, नेक्स्ट यूनिट राइटिंग पैराग्राफ्स। ओके। अभी हम लोग पहले भी पढ़ के आए थे, जो फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा इसको हमने, थर्ड यूनिट में भी पढ़ा इसको हमने, और फाइनल 13th यूनिट में फिर पढ़ रहे हैं हम इसको, थोड़ा एलैबोरेटिव वे में। ठीक है, थोड़ा और एलैबोरेशन में हम पढ़ रहे हैं इसको। हमने पढ़ा था कि जी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है पैराग्राफ को लिखने के लिए, टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस को डेवलप करने के लिए जो उसके साथ में सपोर्टिंग एविडेंस होता है, फिर उसके बाद जो उसके कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं, और जो उसके ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं, ये सारे, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। पहली ही यूनिट में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई थी। टॉपिक सेंटेंस जो भी आपका राइटिंग का सेंट्रल थीम है, उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। अपने टॉपिक सेंटेंस को हम डेवलप कैसे करते हैं, उसे डेवलप करने के लिए जो भी उसके सपोर्टिंग एविडेंस, यानी कि जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, एग्जाम्पल्स हैं आपके पास में, जो रीजनिंग है, जो सपोर्ट करते हैं आपके सेंट्रल थीम को, वो सभी चीजें आप उसमें लिखते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन वर्ड्स, मैंने आपको अलग अलग तरह के ट्रांजिशन वर्ड्स का एग्जांपल दिया था, जैसे कि सीक्वेंस को दिखाने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम को दिखाने के लिए सिंस, बिफोर, आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग कंक्लूजन दिखाने के लिए देयरफॉर, दो, ऑल्दो, एज अ कंक्लूजन, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने आपको बहुत सारे ट्रांजिशनल डिवाइसेस का यूजेज भी बताया कि कहाँ कहाँ पर उनका कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो जब हम पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, उसके अंदर कोहेरेंस, मैंने बताया था आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। कोहेरेंस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना। सबसे पहले ये चीज होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, एक सीक्वेंस होता है। आप जो टेक्स्ट लिखते हैं या मूवीज देखते हैं या कुछ चीजें इस तरह की करते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले ये दिखाते हैं कि हाँ बंदा मर गया, फिर उसके बाद शुरू करते हैं उसके पहले वो कैसे पैदा हुआ, नहीं ना। ऐसे ही स्टार्ट करते हैं ना, बायोग्राफीज हो गई या कुछ भी तरह की राइटिंग हो गया, तो उसमें ऐसे ही स्टार्ट करते हो आप। पहले ही सबसे पहले ही वो इंसान पैदा हो रहा है, फिर वो उसका नाम रखा गया, फिर उसने ये किया, ये किया, ये किया। तो इस तरह से उसका जर्नी जो होता है वो पूरा इस तरह से हम दिखाते हैं। राइट, राइट। यस मैम। तो हाँ हम ये क्या मैम राइट। फॉलो कर रहे हैं? हम ये सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कोहेरेंस। हमारा एक पैरा से दूसरे पैरा में जब हम जा रहे होते हैं, उसकी स्मूथ सेलिंग को दिखाने के लिए हम जो है वो हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों पैरास के बीच में स्मूथ सेलिंग है, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है, वहां पर उसको कोहेरेंस को मेंटेन करते हैं। ताकि ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा जो है बिल्कुल ही इरेलीवेंट हो जाए और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ जी, बोलिए, क्या बोल रहे थे? मतलब मैम ये कह रहा था मैं कोहेरेंस का, आप मतलब कह रहे हो कि कनेक्टर है एक तरह से, दोनों नो, पैराग्राफ इट्स को नॉट जोड़ता है। connector, it is showing a logical sequencing that how the events are happening.
ओके। वो ये बताता है कि किस सीक्वेंस में कोई भी चीज हो रही है। जैसे अगर आप लोगों ने बनानी है, सब्जी बनानी है, गोभी की सब्जी, तो सबसे पहले आपके पास गोभी तो होनी चाहिए ना, तभी तो गोभी गोभी की सब्जी बनाओगे, है ना। अब फॉलो करोगे स्टेप्स, पहले सब्जी को काटा, फिर धोया, फिर उसके बाद उसको बॉईल किया, फिर उसके बाद उसको फाइनली तड़का लगाया, तो सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो ना। यस मैम। तो ये कुछ वैसा ही है, बिल्कुल सिमिलरली। आपकी स्टोरी के अंदर, आपके टेक्स्ट के अंदर, आपके पैराग्राफ के अंदर जो भी हो रहा है, एक लॉजिकल सीक्वेंस में हो रहा है, ताकि मेरी जो पढ़ने वाली ऑडियंस है उसे क्लियर रहे कि आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके मैम, ठीक है, समझ गया। हाँ जी। चलिए, फिर हमने क्या किया है कि किसी भी पैराग्राफ ऐसे को ना 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटने का मतलब, मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ आपको पैराग्राफ का, ठीक है। बाकी चीजें तो मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुकी हूँ। अभी नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ योर पैराग्राफ। जब आप लिखने जाएंगे, जैसे लेटर का एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरह से पैराग्राफ का भी स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। उन्होंने बोला है सबसे पहले लेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या क्या लिखेंगे कि बेसिकली आप जो है बैकग्राउंड देंगे पूरी किताब का, कि क्या है ये जो बुक है या ये जो टेक्स्ट है वो क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर उसकी जरूरत है बैकग्राउंड बताने की, अगर जरूरत है तो बताएंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है बताने की, ठीक है। उसके बाद में आप लोग जो है, उसमें आ जाता है बॉडी पार्ट। ये बॉडी पार्ट को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो आपने लिख दिया कि आप क्लियरली बताते हैं कि आप, अब पैरा क्या है उसमें आप स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, किस बात को किस तरह से बता रहे हैं। और मतलब आप जो भी उसके सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं, यानी कि जो बॉडी पार्ट है पहले उसमें लिखेंगे जो मेन सेंट्रल थीम है, और बाकी जो भी दो, थर्ड है, फोर्थ जो होगा वो उसका सपोर्टिंग फैक्ट होगा, मतलब जो भी उसके सपोर्टिंग मेन एलिमेंट एंड मेन एलिमेंट के जो भी सपोर्टिंग फैक्ट्स होंगे वो होंगे, ठीक है। लास्ट पार्ट जो हमने लिखा है वो है कंक्लूजन, यानी कि 5th पार्ट, ठीक है। कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब क्या है, यानी कि जो भी डिस्कशन हुआ आपका ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, बॉडी पार्ट लिखा, उसके बाद जो भी आपने जो कंक्लूजन कर रहे हैं आप, ठीक है, फाइनली आपके पूरे डिस्कशन, पूरे पैराग्राफ में से निकलकर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, ठीक है, तो वो दैट इज कम्स अंडर अ कंक्लूजन। अंडरस्टूड। यस मैम। तो ये स्ट्रक्चर हम, जैसे हमें पीछे स्ट्रक्चर पढ़े थे समरी का, तो वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे हम, किसका, पैराग्राफ का। अंडरस्टूड। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। होप सो कोई भी आपको इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। अगला मैं जैसे अभी बता ही रही थी आपको, बायोग्राफिकल। तो बायोग्राफिकल राइटिंग अगर करने जा रहे हैं तो अब आप मुझे बताइए, किसी की भी बायोग्राफिकल राइटिंग करने जा रहे हो, कोई भी एक एक्स वाई कैरेक्टर ले लो, तो बायोग्राफिकल जब आप राइटिंग करने जाते हो, समरी करने जाते हो, तो अरेंजमेंट जो करोगे क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स का, उसमें कैसे सीक्वेंस फॉलो करेंगे, एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल दीजिए मुझे, ऑटोबायोग्राफिकल जो, ऑटोबायोग्राफिकल नहीं, सिर्फ ग्राफिकल राइटिंग कर रहे हो, बायोग्राफिकल, बताइए जल्दी कीजिए, एग्जाम्पल दीजिए किसी का भी। मैम उसकी पैराग्राफ या समरी? पैराग्राफ डियर। ओके मैम, इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली बताएंगे कि वो पर्सन जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वो फेमस हुए। जिस टाइप अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बायोग्राफी लिखेंगे तो हम उनके बारे में बताएंगे कि वो हमारे प्रेसिडेंट है, और उनके और उन्होंने हमारे लिए स्पेशल चीज क्या करी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उसके बाद हम हम्म जैसे हम अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम उनका बर्थ वाला बताएंगे कि उनका बर्थ रामेश्वर में हम्म हुआ था। वेरी वेरी नाइस। हाँ, देन हम उनके जब हम उनका बर्थ इवेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की उन्होंने क्या कैसे स्ट्रगल करके कैसे अपनी स्टडीज को फॉलो करा, हम्म कैसे करी। जैसे हम्म उनके पास स्टडी करने के लिए स्टार्टिंग में टाइम नहीं था, पैसे नहीं थे, तो उन्होंने कैसे इवेंट्स को, सारे ऑब्स्टेकल्स को
क्रॉस करके अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी करी, देन उनके हम मेन इवेंट जो उनकी लाइफ में हुए कि कैसे उन्होंने वो हमारी अग्नि जो हमारी मिसाइल थी उसको लॉन्च करने के लिए वर्क करा। देन उसके बाद वो हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट बने, वो भी 2 बार। और उसके बाद हम्म, उनके जब मेन इवेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उनकी डेथ के बारे में लिख देंगे कि वो एक्सीडेंट की डेथ वो हुई। सारा कंक्लूजन में आ जाएगा। हाँ और कंक्लूजन में हम सिर्फ उनकी डेथ के बारे में नहीं, कंक्लूजन में हम उनकी लाइफ की जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उनको फिर से समराइज करेंगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स उतनी उन्होंने अपनी लाइफ में की। वेरी नाइस yes, मीनाक्षी। सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बायोग्राफी राइटिंग। यस मैम। कोई कोई डाउट मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि इसमें है। अगर फिर भी अगर है तो पूछ सकते हैं। आसान है मैडम ये तो। चलिए, सैप्चुअल रिलेशनशिप। इसके बाद अगला है सैप्चुअल रिलेशनशिप। सैप्चुअल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से कि जब मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगी तो आप मतलब हम जो है लोकेशन का क्या रिलेशन है, ठीक है, को रिलेशन स्ट्रक्चर के साथ, वो हमें समझने में बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, ये मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलती हूँ कि द द कपल लिव्स अंडर द ट्री, अभी क्या इमेजिनेशन आ रहा है आपके माइंड में? द कपल लिव्स अंडर द ट्री। ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? मैंने आपको इमेजिन करने के लिए बोला है, ट्री के बीच में और कपल के बीच में क्या कोरिलेशन बता रही हूँ मैं। मैडम वही तो मैं बोल रहा हूँ, हमारे मन में ये आएगा ना कि ऐसा कैसे हो सकता मैम है, ऐसे उससे क्या लॉजिक होगा कि नहीं है। नहीं हो सकता है, लिविंग इज अ डिफरेंट थिंग अरे बट आप मैम लोग क्या दिमाग चलाते हो, That मैं it's क्या living पूछ रही हूँ। under the tree. That they're यस, living under the tree. yes, exactly what trying to tell over here, that there is a correlation between the tree and the couple. That's what I'm explaining. Understood? यस मैम। क्लियरली समझ में आया है सबको अब? मैम एक बार और रिपीट कर दो। मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल दे देती हूँ। The girl, the girl is ahead of boys. The girl is ahead of boys. अभी क्या सेंस आउट कर पा रहे हैं? ahead जो वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है, वो एक सैप्चुअल रिलेशनशिप बता रहा है। सैप्चुअल रिलेशनशिप मतलब एक शब्द से जो है आप पूरी अपने माइंड में क्या कर पाते, समझ पाते हैं कि क्या रिलेशनशिप बताया जा रहा है दो चीजों के बीच में। ठीक है, जैसे मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया था अभी अंडर, ऐसे ही मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ अब अहेड। जब मैंने कल कहा कि द गर्ल इज अहेड ऑफ द बॉय, तो क्या मतलब हुआ उसका? कहा रुचिका क्या मतलब हुआ इसका? मैम मुझे इसमें आइडिया नहीं आ रहा अभी। अरे सिंपल सी स्टेटमेंट है, इसका मतलब पूछ रही हूँ मैं, क्या हो गया? वो स्टेटमेंट रिपीट करेंगे? द गर्ल इज अहेड ऑफ बॉय। मैं ट्राई करूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। द गर्ल अहेड मींस कि गर्ल आगे। बॉय से आगे है। वेरी मैम नाइस, कैन यू हेयर मी? वेरी नाइस जीतू, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। हाँ जी, मैम रुचिका क्या कह रहे हैं? सॉरी मेरा वाईफाई इशू था इसलिए मैं थोड़ा मेरी वॉइस शायद आ नहीं पाई। हाँ जी, हाँ जी, अब तो आ रही है। अभी आ रही है। वो उसका मतलब कि वो लड़की लड़के से आगे चल रही है, उससे आगे। या या यू आर राइट इन पंकज, एनी सेंस। राइट इन एनी राइट। सेंस। तो यानी कि देखिए आपने यहाँ पे सैप्चुअल रिलेशनशिप निकाले दो तरह के। एक तो हमने फिजिकल सेंस में निकाला, फिजिकल सेंस में निकाला कि लड़की लड़के से आगे है। ये फिजिकल सेंस में हम ऐसे भी ले सकते हैं कि लड़की लड़के के आगे खड़ी है। अब इसको एक इंटेलेक्चुअल सेंस में भी निकाला पंकज में सैप्चुअल रिलेशनशिप की, शी इज इंटेलिजेंट देन द बॉय, तो इसका ये भी हो सकता है। तो वेरी नाइस, ये है सैप्चुअल रिलेशनशिप। समझ में आया अब आप लोगों को? यस मैम। Yes, ma'am. अच्छा, आप लोग कभी फॉर्म भरते हैं
तो उसमें लिखा हुआ होता है ना फॉर्म के आगे कि क्या लिखा होता है, राइट राइट बिलो द लाइन और अंडर द लाइन, विद इन द लाइन, विद इन द स्पेस, राइट ओनली विद इन द स्पेस। उसका मतलब क्या होता है, क्या रिलेशनशिप बता रहा होता है कि आपने जो भी लिखना है वो स्पेस के अंदर ही लिखना है, स्पेस से बाहर नहीं जाना है आपने। यस समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम। यस हाँ जी रघुनंदन जी, कुछ समझ में आ रहा है या फिर आज सिर्फ क्लास ज्वाइन करके बैठे हुए हैं आराम से? आवाज नहीं आ रहा है आपका। सॉरी। हाँ जी, तो वहां पे आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो, अंडर द ट्री यानी कि ट्री के नीचे रह रहे हैं? नहीं नहीं, अंडर रहेगा। अंडर से ही तो आप रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पा रहे हैं, लिफ्ट से थोड़ा रिलेशनशिप फाइंड आउट कर पा रहे हैं। जैसे हम वर्ड यूज करते हैं ना, बिलो, अंडर, बिनेथ, बिसाइड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, इनसाइड, ये इस तरह के शब्द हैं जो कि सेप्चुअल रिलेशनशिप, लोकेशन के बीच में और पर्सन के बीच में एक सेप्चुअल रिलेशनशिप आपको क्लियर करके बताता है कि क्या है। ड्रॉ सर्कल अराउंड द आंसर। मैम एक क्वेश्चन है मेरे पास, मेरे को पूछना है। पूछिए पूछिए। मैम आप कह रहे हो सेप्चर, ये जो अबाव अंडर ये सैप्चुअल, सब मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला सैप्चर नहीं, इट्स अ सैप्चुअल, सेप्चर। सैप्चुअल रिलेशनशिप। मैम बट आपने अभी जैसे कहा था अहेड वाली बात कि द गर्ल अहेड द बॉय, मतलब तो लेकिन आपने उसमें यूज करा था फिजिकल कुछ, शायद ऐसे कहा था आपने। हमने जो सैप्चुअल रिलेशनशिप निकाली फिजिकल बेसिस पे भी निकाली, ठीक है। ओके। अब ये रिलेशनशिप जो सैप्चुअल रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो यानी कि बंदे, यानी कि को रिलेशन बता रहा है, वो आपका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है। तो उसके अंदर रीडर का पर्सपेक्टिव, वो फिजिकल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है, लोकेशन बेस्ड भी हो सकता है, टाइम बेस्ड भी हो सकता है, बहुत सारी सेंसेस। मतलब यानी कि यहाँ पर बेसिकली करता क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम राइटिंग में इस तरह की आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला इमेजिन कर सके। कभी किसी जगह की खूबसूरती को डिफाइन करना होता है तो हम क्या कहते हैं, द साइड लाइन्स में देयर आर द ब्लॉसम ट्रीज आर देयर ऑन अलोंग द रोड। तो अलोंग द रोड जैसे ही मैं बोलती हूँ कि ब्लॉसम ट्रीज है, तो मेरे माइंड में इमिडिएटली आता है कि भाई बैक टू बैक ट्री लगे हुए हैं, उनके ऊपर सफेद रंग के फूल खिले हुए हैं, है ना। क्या तो मैम? यानी कि सेप्चुअल रिलेशनशिप का राइटिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से, ताकि हम फिजिकल लोकेशन को लेकर जो भी को रिलेशन है उसको समझा पाए। और वो को रिलेशन जो है वो आपका फिजिकल लोकेशंस के साथ साथ में इंटेलेक्चुअल और आपकी सेंसेस को कर्व करने वाला हो सकता है। मान लीजिए राइटर को किसी तरह का कोई एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है लोकेशन को लेकर, टाइम को लेकर, परसिवियरेंस को लेकर, किसी के इंटेलिजेंस को लेकर, तो वहां पर हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैम क्लियर है? क्लियर मैम। चलिए, ये तो था सैप्चुअल रिलेशनशिप। अब आ जाइए क्लास रिलेशनशिप। देखिए वर्ड क्लास से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। किसी की प्रोफेशनल क्लास हो सकती है, ब्लड रिलेशंस की क्लास हो सकती है, सोसाइटी में एक जैसा काम करने वालों की क्लास हो सकती है। तो एक क्लास में डाल दिया उठा के मैंने, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैं इसी तरह से लेती हूँ, कोई मेडिकल प्रोफेशन वाले लोग ले लेती हूँ, डॉक्टर, नर्स, डेंटिस्ट, तो ये सारे क्या हो गए, मेडिकल प्रोफेशन वाले हो गए, है ना। अगर मैं इनको बोलती हूँ फादर, आंट, अंकल, सन, मदर, इन सबको किस क्लास में डालेंगे आप? फैमिली रिलेशनशिप्स। वेरी नाइस, फैमिली रिलेशनशिप्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया क्लास रिलेशनशिप। या मैम। यस मैम।
हम्म अब अब मुझे तो बता दीजिए नैरेटिव कॉम्पोजिशन, नैरेटिव का मतलब क्या होता है? मैम जो ऑथर नरेट कर रहा है स्टोरी को। बिल्कुल सही कहा आपने। अब नैरेटिव कॉम्पोजिशन क्या हो गई? कॉम्पोजिशन मैं पीछे पढ़ा के आई हूँ आपको। मैम जिसमें नरेशन हो रहा है किसी स्टोरी लाइन जो भी हमारी चल रही है उसे नरेशन हो रहा है, तो जो नरेटर हमें नरेशन कर रहा है वो उसको एक कंपोजिशन में प्रिपेयर दिखाना। वेरी नाइस। तो अब जरा मुझे एक कोई नरेशन का एग्जाम्पल दे दो, कोई और देगा, आप नहीं दोगी। काजल, Yes, ma'am. काजल। Please, can हाँ, you repeat the नैरेटिव, question? Ma'am, I नैरेटिव have a कॉम्पोजिशन। question, if I could please. या श्योर श्योर श्योर। Ma'am, the narration, is it always in third person if we have to नो, write it? no, no, not at all. You could be the narrator yourself and the presenter yourself. It is not mandatory like that means there may be a third person. It is not necessary that the Okay, ma'am. third person who is watching them, that person is narrating something. It is not necessary. Basically, it's like that you yourself can present that. You yourself be the presenter and the narrator itself. Okay, ma'am. So Thank yeah, you. sometimes mostly we see the examples around that are pretty quiet. We've seen that the third party narrations. But like Minakshi already said, the narrator himself. So when she said that himself, so the person is narrating on its own. It is the first person. Okay, ma'am. Yeah. Anybody? Yeah. I was asking Ajal. Kajal, you give example. Give example of narrative composition. I'm just like anyone story about a personal experience. एग्जाम्पल दो बाबा। हाल चलो, अब Exam. कभी पर्सनल एक्सपीरियंस का नरेट करके बताओ। चलो कोई भी अपना एक्सपीरियंस नरेट करके बताओ। Mm, चलो इंग्लिश के क्लास का एक्सपीरियंस कैसा लगा वो ये नरेट कर दो। चलो मैं और इजी बना देती हूँ। चलो इंग्लिश का क्लास तीनों दिन लिया काजल, yes, ma'am. बस उसका एक्सपीरियंस नरेट करो। Okay. फर्स्ट डे जब मैंने क्लास अटेंड की, मैंने हम्म बाकी टीचर से लाइक कंपेयर किया। आप थोड़े अलग थे, लाइक आपने थोड़ा स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में अच्छे से मतलब पढ़ाना और बातचीत करना थोड़ा अलग लगा, और अच्छी थी क्लास। मैंने अटेंड की। फर्स्ट डे में भी मेरा थोड़ा ध्यान नहीं था क्लास में, मैं बाहर थी। बट सेकंड थर्ड डे हम्म मैंने अटेंड अच्छे से करी क्लास, आज भी ली है, नोट्स भी क्रिएट किए हैं। कुछ पूछो तो बताऊं, बाकी ओके सब ठीक है। हाँ, दैट्स इट मैम। ओके। सी नाउ भावना, योर डाउट इज क्लियर। Yes, ma'am. उसने अपना एक्सपीरियंस खुद से नरेट किया है, सो नॉट मैंडेटरली द थर्ड पर्सन, राइट? Yes, ma'am. It was first person. फर्स्ट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, राइट? Ma'am. तो नैरेटिव कॉम्पोजिशन सबको समझ में आ गया? यस मैम। Yes, सबको ma'am. क्लियर है? कोई हारुचि का कोई एग्जांपल दोगे? मैम इसमें जैसे अगर हम पर्सनल एक्सपीरियंस का एग्जांपल ना देके, हम्म अगर जैसे कि जो बॉर्डर पे कुछ फाइट्स हम्म होती हैं तो उस वेरी पे हम नाइस। एक कॉम्पोजिशन बना के नरेट हम कर सकते हैं, तो एक एज एन स्टोरी लाइन भी उसमें पूरा आ जाएगा और हम एक उस हम्म इंसिडेंट को कॉम्पोजिशन के फॉर्म में करके नरेट कर हम्म सकते हम्म देखो पर्सनल एक्सपीरियंस का एक नैरेटिव हो गया, अभी दूसरा नैरेटिव शी सेड कि मान लो कोई इंसिडेंट हुआ तो वो मैं बता रहा हूँ, तो आई एम हियर टॉकिंग एज अ थर्ड पर्सन क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूँ। मैं सिर्फ जो रिपोर्टेड है उसके बेसिस पे कॉम्पोजिशन प्रिपेयर कर रहा हूँ। क्लियर है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। मैम क्लास रिलेशनशिप के बारे में तो बता दें। हाँ जी, क्या कह रहे हैं पीयूष? क्लास रिलेशनशिप। क्लास रिलेशनशिप का डाउट है क्या? यस मैम। अच्छा आप ही बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है? मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप ही बताना, ठीक है? टीचर, स्टूडेंट, प्रोफेसर, लेक्चरर, कौन सी क्लास में आएंगे ये? सिर्फ ये पकड़ो, प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर।
कौन से क्लास में रखोगे इनको? हाँ जी, कोई और बताएगा? मैम एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन। बहुत बढ़िया खुशी। समझ में आया पीयूष? यस मैम। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ डॉक्टर, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, इनको किस क्लास में रखोगे? मैम प्रोफेशंस। वेरी नाइस मीनाक्षी, वेरी नाइस। प्रोफेशन है वो उनका। समझ में आया पीयूष? यस मैम। वेरी गुड। चलिए आगे हम चलते हैं। ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग, उसके बाद में सर्वे रिपोर्ट खत्म, उसके बाद आपका पूरा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। ठीक है, बस यही दो चीजें अभी आपके रह गई हैं। देखो, रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आएगा आपको। रिपोर्ट राइटिंग, सर्वे रिपोर्ट, दोनों में हमें अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, मैं उससे आपको समझाने से पहले आप लोगों से थोड़ा सा कुछ पूछना चाहती हूँ। आप लोगों ने कभी देखा है जैसे इंटरव्यूज होते हैं लोगों के, आप लोग कई ऐसे शोज भी देखते होंगे कि लाइक उसमें वो बैठे हैं इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ इस तरह से आपने देखा भी होगा। कोई ऐसा आपने देखा हो, प्लीज उसका कुछ एग्जांपल जो है कीजिए। मैम एक फिल्म में आया था इंटरव्यू वाला, नायक फिल्म। हाँ प्लीज बताइए कुछ उसके बारे में। मैम नायक मूवी में अनिल कपूर हीरो होता है और एक नेता होता है, मुख्यमंत्री पीएम। तो उसके खिलाफ ना इंटरव्यू लेता है। तो इंटरव्यू के दौरान वो करता है कि लड़ाई हो जाती है, दंगा फसाद हो जाता है। तो मुख्यमंत्री मना कर देता है कि ना कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है पुलिस वालों को। तो वो ना हम्म ये सब पूछता है कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो वो कहता है आप बन जाइए एक दिन के लिए मुख्यमंत्री। तो अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनता है और 350 या 400 करोड़ रुपए घोटाला होता है, तो सब कुछ सही करता है। और फिर वो खुद है ना, अनिल को मुख्यमंत्री हट जाता है। जनता हटा देती है मुख्यमंत्री को, अनिल कपूर को बना देती है मुख्यमंत्री फिर। ये तो आपने समरी बता दी। एक्चुअली मेरे को इंटरव्यू रिलेटेड चाहिए, जहाँ पे आपने इंटरव्यूज देखे हो, जैसे सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं, कॉफी विद द करण हो गया, या फिर मैम रविंद्र। जैसे वो आपकी अदालत आता है तो उसमें भी पॉलिटिशियन हो हाँ या वो भी उनका इंटरव्यू लेते हैं। हाँ, जहाँ पे एक्चुअली बेसिकली उनका इंटरव्यू ही चल रहा है, वो उनका पूरा सब कुछ अगला पिछला सब उसमें उसमें पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या हो गया, कुछ बोलो। हाँ मीनाक्षी, कुछ एग्जाम्पल दे दो। मैम आप एक बार रिपीट करोगे, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। कंफ्यूजन क्यों हो गया, बस यही पूछ रही हूँ कि जैसे आपने कभी इंटरव्यूज देखे हो, जैसे जहाँ पे इंटरव्यू लेता है वो, बिकॉज क्योंकि ऐसी इंटरव्यू नहीं होता है, कोई सेलिब्रिटी है उसका इंटरव्यू ले रहे हैं तो पहले से प्रॉपर क्वेश्चनियर आप जो है प्रिपेयर करते हैं कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। तो एक रिपोर्ट राइटिंग आपने कर रही है तो कैसे करेंगे, इंटरव्यू देख रहे हैं, इंटरव्यू की रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। मैम हम उसमें लिख सकते हैं कि रिपोर्टर कौन था, उसने क्या क्वेश्चंस पूछे, और फिर जो सेलिब्रिटी था उसने क्या आंसर्स दिए। मैम मैं बताती हूँ। मैम इसमें हम्म ऐसा होता है कि मैम जो सबसे पहले इंटरव्यू से पहले जो इवेंट्स की तैयारी हुई कि कैसे वो हमारे हम्म स्टूडियो में आया, और उसके बाद हम हम्म। लोग बैठे, हमने उससे ऑफर करा कॉफी टी कुछ। उसके बाद हमने उससे क्वेश्चनरी दिखाई कि हम ये क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद उसने नहीं, एक्सेप्ट। उसको क्वेश्चनियर नहीं दिखाते हैं, उसको क्वेश्चनियर क्यों दिखाएंगे। नो मैम, काफी मैंने वो तो एक हमारे अपने लिए होते हैं ना क्वेश्चनियर, तो सामने वाले को तो थोड़ा दिखाएंगे क्वेश्चनियर कि ये ओके क्वेश्चनियर मैं लेके बैठी हूँ तुम्हारे लिए। ओके ओके। तो मैम जैसे हमने उसके बाद फिर कंफर्टेबल करने के लिए हमने काफी क्वेश्चंस पूछे, उसके बाद जैसे हमारे इंटरव्यू में हमने क्वेश्चंस ये करे। हमारी स्टेज 1 होती है, जहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे ही होता है भावना। पहले हम लोग प्री रिक्विजिट्स की तैयारी करते हैं कि हाँ इंटरव्यू लेंगे, पहले तो इस आदमी का जिसका लेने जा रहे हैं हम इंटरव्यू, उस इंसान की पूरी हिस्ट्री को पढ़ेंगे।
ठीक है, मुझे उसके बारे में पहले एडवांस में सब कुछ पता होना चाहिए। उससे बात करेंगे, एक जगह फिक्स करेंगे, एक डे फिक्स करेंगे, एक टाइम फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहली चीज जो है, भी सामने वाला आएगा, आ जाता है, बैठ जाता है। पहली स्टेज में मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराऊं, क्योंकि जब तक सामने वाला, मेरे जो सवाल होंगे या जो बातें होंगी, मैं वो इस तरह से करूंगा कि सामने वाला मेरे से बात करने में क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। क्योंकि कोई भी इंसान, आपको याद है आपकी जो फर्स्ट क्लास थी, तो मैं आप सब लोगों का इंट्रोडक्शन मांग रही थी कि अपने बारे में कुछ बताओ। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, आई वाज ट्राइंग टू मेक यू पीपल कंफर्टेबल, सो दैट कि आप मुझसे बात कर पाओ। क्योंकि अगर आप मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मुझसे बात ही नहीं करोगे। हालांकि अभी भी क्लास के अंदर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं बोलते हैं, तो बट स्टिल एटलीस्ट मैं कह सकती हूँ कि 50% क्लास से मेरे को आंसर आता है। बट 50% क्लास तो ठीक है, ऑफलाइन सेशन में एटलीस्ट 50% स्टूडेंट ही बात कर रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर मी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है, उस अंदर तो हम फिक्सेशंस करते हैं कि हाँ जी, कहाँ इंटरव्यू होगा, कब होगा, किस डेट को होगा, किस टाइम पे होगा, क्या लोकेशन पे कब पहुंचना है, ऑल दैट, और ये सब सब कुछ। सेकेंड स्टेज में जब फाइनली आप वहाँ उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि मुझे सामने वाले के साथ बिगिन करते हुए सामने वाले को क्या समझाना है कि सबसे पहले तो उसको कंफर्टेबल कराना है। वंस वो कंफर्टेबल हो जाएगा तो वो मुझसे बात करेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा तो मुझसे ठीक से बात वो नहीं कर पाएगा। तो मुझे सामने वाले की कंफर्टेबिलिटी उसको करने के बाद में सेकेंड जो स्टेज होती है जहां मैं शुरू करता हूँ, तो पहले तो मैं उसको इनिशियली जनरल सवाल ही करता हूँ, फंडामेंटल क्वेश्चंस उसके बर्थ से लेकर उसके इंटरेस्ट से लेकर कुछ तरह के इस तरह के क्वेश्चंस मैं उसके करूंगा। तो सेकंड स्टेज में मैं थोड़ा सा उससे कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी कर सकता हूँ जो एम्बैरसिंग भी हो सकते हैं, कुछ उसकी लाइफ की डार्क रियलिटीज से भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा सटायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि बिकॉज इस तरह से ना कहीं कि सामने वाले को किसी भी तरह से उस चीज का सवाल का जवाब देने में दिक्कत हो, तो इस तरह से नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद हम उसके डेप्थ में चले जाएंगे एकदम, जो भी उससे हम इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, तो उस तरह के डीप डेप्थ क्वेश्चंस में हम चले जाएंगे। फाइनली जो आउटकम थर्ड स्टेज जो होता है, उस स्टेज के अंदर हमने जो भी बिगिनिंग में इम्पोर्टेंट बातें की थी उसको एक बार दोहराएंगे। फाइनली जो भी मॉरल ऑफ द स्टोरी हर जगह हम निकालते हैं कंक्लूजन के अंदर, कि जी इस नोट पे जो है, मीनिंगफुल नोट पे हम जो है इंटरव्यू को एंड करते हैं, वो हमारा थर्ड स्टेज होता है। ठीक है। मैम जी बोलिए। मैम 3:30 को ना हमारे बिजनेस की क्लास है। हाँ जी, किसका, कौन है, कौन बोल रहा है, खुशी? यस मैम। तो बेटा एक बात बताओ, 3:30 पे आपका क्लास है, तो मैं आप लोग मैं ठीक है आप चले जाओ, कोई इशू नहीं है। एक काम करना, मैं ना अराउंड 50 या 55 के आसपास जब अटेंडेंस लूंगी ना, तो आप एक बार यस ज्वाइन कर लेना। ठीक है, एक बार ज्वाइन कर लेना, 50 के अराउंड, 55 के अराउंड ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं स्क्रीन शॉट अटेंडेंस का, क्योंकि अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। मैम। खुशी, आपका 6 से 8 भी लेक्चर है क्या मेरे साथ? नो मैम, नो मैम। ओके ठीक है, ठीक है। एक तो ये जो कंजाइन हो जाते हैं ना लेक्चर, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। बच्चा कहाँ, एक ही बच्चा है, उसका लेक्चर इधर भी इधर भी, किसका लेगा किसका नहीं लेगा। मैम अभी इको का है 3:30 से। नहीं मैम नहीं, होता है मेरे मेरे अम, मेरा जो कल जो 4 से 6 का लेक्चर है, 4 बजे से 6 का लेक्चर है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं। पर लेकिन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मैम दूसरा लेक्चर चल रहा है, 90 बच्चे वहां पे एनरोल होके बैठे हैं, तो इधर कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा होता है। तो दूसरी साइड कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा होता, क्योंकि बच्चे का लेक्चर जो है वो मतलब दो, एक ही टाइम पे 2 लेक्चर्स हो रहे हैं, तो वो उधर एक ने जिसने पहले से एक जगह ज्वाइन किया है, तो वो वहीं बैठा रहता है। ये भी होता है। Few people are just doing things just for
creating a trouble. So now reporting is clear to everybody. Yes, ma'am. Yes, Very ma'am. nice. So report before a reporting anywhere, we have to follow the certain steps. That before starting, examine your notes also. Write down the location, the device, that what you are going to do, what are you going to do. And always remember that you have to prepare the questionnaire. Questionnaire must be prepared in a certain manner that you can ask the questions, you know, accordingly. Like I have told you that there is an initial stage, then you comes to the middle stage of it, and how you do the transition to the final end point of that. So for that, you have to prepare the questionnaire accordingly. So you can also use some quotes into it or something like that to make your interview more perfect and better. So it is clear. Clear. Okay. Then sometimes हम लोग हाँ, एक इंटरव्यू में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स. कई बारी हम कुछ इस प्रकार के Who is this? Who is Kritika? What is going on? 2 नंबर देवा मैडम तानू. Yeah. So there are confusing words. What you will do with these confusing words? See, confusing words like we said accept, 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 EXCEPT, expect. See, दोनों में शब्दों का अर्थ ही अलग है. लाइक अफेक्ट, इफेक्ट, दोनों का अर्थ ही अलग अलग है. अगर मैं ACCEPT बोलती हूँ तो दैट मीन्स एक्सेप्ट, राइट, किसी चीज को एक्सेप्ट करना. बट मैं EXCEPT बोलती हूँ तो एक्सेप्शन हो गया वो तो, है ना, उसको छोड़कर हो गया वो तो. अफेक्ट, AEEFT, इफेक्ट, है ना, कितना करता है. और EFFECT, उसके प्रभाव, कॉन्सिक्वेंसेस. तो ये जो है शब्द, हम शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि समटाइम्स जो वर्ड्स होते हैं उनका जो मीनिंग होता है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है. राइट? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? यस मैम. कोई डाउट? नो मैम. वेरी नाइस. कोई एग्जाम्पल दीजिएगा कंफ्यूजिंग वर्ड्स का. और भी ऐसे बहुत वर्ड्स हैं, लाइक एडवाइस, एडवाइस, बहुत बहुत सारे हैं. allusion, illusion, adapt, adapt. आप लोग अपने एंड से कुछ एग्जाम्पल देंगे मुझे? कंफ्यूजिंग वर्ड्स का. सॉरी, वन बाय वन अनम्यूट करके बोलिए. आप लोग क्लियरली मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं. मैं सबको क्लियर ऑडिबल हूँ. Yes, ma'am. You're all यस मैम. जैसे मैम for आप लोगों का आवाज ठीक से मुझे नहीं आ रहा है. जैसे कि कास्ट एंड कास्ट, लाइक वन कास्ट इज हम किस रिलीजन से हैं, दैट कास्ट, एंड अदर कास्ट इज कि हम उस ड्रामा में, उस शो में हाँ, किन किन को क्या कास्ट कर रोल रहे प्ले हैं. कर रहे हैं. हाँ, ठीक है, ma'am, ठीक जैसे है. empathy, sympathy. ये तो हाँ, एम्पैथी सिंपैथी तो बिल्कुल अलग अलग हो गए ना डियर. हाँ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ अगर मैम किसी को हाँ, मीनिंग नहीं लोग पता तो कंफ्यूज हो जाते. confuse हो राइट राइट जाते हैं. राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, कंफ्यूज हो हाँ, जाते और हैं, मैम बिल्कुल एक सही. होता है इमाइग्रेट, होता है इमिग्रेट. हाँ, यस. मैम अडॉप्ट एंड अडॉप्ट. सॉरी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. मैम बैड मतलब एंड बैड. फ्रॉम फादर एंड फर्दर. हाँ, ये भी होता है. लोएस्ट हाईएस्ट. हाँ, वही है ना. मैम समटाइम्स मीनिंग पता होना भी बहुत जरूरी होता है, वरना उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है ना.
यस मैम। तो ये देखते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब सबको समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो, क्लियर ना हो रहा हो, है ना? यस मैम। वेरी गुड। अब हम लास्ट यूनिट पे आ जाते हैं, दैट इज योर रिपोर्टिंग सर्वे। अभी तक तो हमने एक इंटरव्यू रिपोर्ट के बारे में लिख रहे थे या रिपोर्ट के बारे में लिख रहे थे, ठीक है, बट अभी हम बात कर रहे हैं सर्वे। सर्वे देखिए, पहले सबसे पहले मुझे ये बताओ, सर्वे होता क्या है? कभी आपने सुना है कि हमारे यहाँ पे सर्वे करने वाले आए थे, सेंसस वाले पूछने आए थे कि तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं? ये सब यस सुना मैम। है आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम सर मैम। तो सर्वे क्या होता है आपके हिसाब से? क्या लगता है सर्वे क्या होता है? मैम सर्वे वो होता है जो एक बहुत सारे लोग के अंदर एक डाटा एक ले। एक 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 करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, मुझे भी समझ में आए क्या बोल रहे हैं आप लोग। मैम कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम पीपल। हाँ ठीक है, पर किस लिए? सर्वे में अपने लिए तो करूंगा नहीं। मैं किसी मैम मैम पर्टिकुलर पर्पज गवर्नमेंट की के लिए। नजर में रखने के लिए कितने मतलब जनसंख्या है, या फिर जैसे जमीन का भी सर्वे होता है तो किसका इसका जमीन है ऐसा। चलो वो तो तुमने एक गवर्नमेंट के लिए कर दिया, उसके अलावा भी तो सर्वे होते हैं। मैम Ma'am, कंपनी का maybe like in मैम a company for improving the food of the employees, उसके लिए employee का सर्वे हो कि क्या प्रेफर करते हैं ज्यादातर employees और कैसा खाना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल मैम बिल्कुल। कोई भी क्वेश्चन एंड जो पहले से ही है उसे सर उसको मतलब कंप्लीट। जांच होता है मैम किसी भी चीज का। एक पीयूष, एक एक करके। हाँ सर्वे फॉर लैंड लेआउट प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग के लिए भी कर सकते हैं। मैम जो कोई पहले मैम से और नहीं बोलेगा तो मैम कोई नहीं। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। मैम जो जब बच्चे को जैसे पोलियो के लिए आते हैं तो उनके पास जैसे वो सर्वे करके लाते हैं कि यहाँ यहाँ पे इस लोकेलिटी में यहाँ यहाँ बच्चा है, हॉस्पिटल से सर्वेस करके अलग अलग हॉस्पिटल से, तो वहां से सर्वे करके फिर वो आते हैं कि आपके यहाँ पे बच्चा है तो उनको पोलियो की दवाई दो, तो इस तरीके के सर्वेस भी होते हैं। बिल्कुल सही। और हाँ हाँ बिल्कुल, बताते थे ना, इधर इतने हो गए, उधर उतने हो गए, इतना हो गया, बताते रहते थे रोज रोज। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब सर्वे आपके माइंड में क्लियर है कि सर्वे क्या है। देखिए पहली बात तो ये, सर्वे कभी भी इंडिविजुअल अपने लिए नहीं करता। सबसे बड़ी खासियत तो सर्वे की यही है। सर्वे जब हम कर रहे होते हैं, हम किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के लिए कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो यानी कि सबसे पहले अगर किसी के लिए सर्वे करने जा रहा हूँ तो वो बंदा मुझे बताएगा, वो अपना पर्पस क्लियर करेगा कि मैं ये सर्वे करवा क्यों रहा हूँ। मतलब मैं अगर कोई सर्वे करवाने जा रही हूँ किसी से, तो मैं वो सर्वे क्यों करवा रही हूँ, तो वो उसका पर्पस जो होगा ना वो बिल्कुल क्लियर करेगा वो पहले से ही कि ये पर्पस है। यानी कि जो सर्वे लोग करने जा रहे हैं उनको सबसे पहले उसका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि हम ये सर्वे इस कंपनी के लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कंपनी इस सर्वे से क्या जानना चाहती है। जैसे अभी आपने देखा होगा, लोग आते थे, आपको सैंपल्स भी देते होंगे, सैंपल यूज करें। आजकल आपने देखा होगा हर चीज का छोटा छोटा सैंपल आता है, चाहे वो खाने पीने की चीज हो। जैसे भावना बोल रही थी कि हम एम्प्लॉयज का सर्वे कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि फूड क्वालिटी कैसी नहीं कैसे। तो हम ये देखते हैं कि अलग अलग तरह के सर्वेज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। तो बेसिकली सर्वे जब भी करेंगे किसी ना किसी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं, किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो जब किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं तो मेरे लिए सबसे जरूरी है पहले पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं किस पर्पस से कर रहा हूँ। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली एक गोल है। मान लीजिए कोई कंपनी चॉकलेट बनाती है, वो ये जानना चाहती है कि मेरा जो चॉकलेट है वो आ, किस किस एज ग्रुप के लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं और कैसा कैसा रिव्यू दे रहे हैं। अगर लाइक बिलो एडल्ट कोई है, वो खा रहा है, तो उसका रिव्यू कैसा है। एडल्ट्स खा रहे हैं तो उनका क्या रिव्यू है।
एल्डर्स खा रहे हैं, तो उनका क्या रिव्यू है। तो मैं सर्वे करा रहा हूँ इसलिए, और मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मुझे कहीं से भी नेगेटिव फीडबैक आता है किसी भी से, तो मैं जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेंज करना चाहता हूँ। मैं सर्वे करवा रहा हूँ, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सर्वे करा रही है, ये पता लगा रही है कि जी पोलियो पूरी तरह से खत्म हो गया हमारे यहाँ पे कि नहीं खत्म हो गया। अभी आपको पता है रिसेंटली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की, आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। हमारी कंट्री के अंदर पल्स पोलियो तो खत्म हो गया, पोलियो तो खत्म हो गया, पर लेकिन हर हर कहते हैं कि 98% लोग आज भी अभी तो क्योरेबल हो गया है टीबी, और फ्री मेडिसिन भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, पर लेकिन आज भी हमारे यहाँ पे 98% अपनी उम्र में, अपनी पूरी एज में एक बार टीबी का शिकार जरूर होता है। चाहे वो उसका इनिशियल पीरियड हो, मिडियोकर हो, या उसका एंड पीरियड ऑफ साइकिल हो, वो टीबी का शिकार जरूर होता है। और सबको पता है कि टीबी क्यों होता है, एवरीबडी नोज, है ना, यू नो ना। सबको पता है ट्यूबरक्लोसिस के रीजंस क्या हैं। कुपोषण, यस malnutrition, malnutrition की वजह से हो जाता है यस मैम। टीबी। तो ये मुझे कैसे पता चला कि 98% लोग हमारी कंट्री के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इसके शिकार जरूर होते हैं। ये मुझे पता चला जब ये मैंने देखा, क्या कहते हैं, जब मैंने देखा ये कि ये एक सर्वे रिपोर्ट आया था, मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, एक सर्वे रिपोर्ट आया था, तो उससे पता चला मुझे। तो यानी कि सर्वे जो किए जाते हैं, सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है। ऑर्गेनाइजेशन अपना एक पर्पस बताती है कि मैं क्यों ये सर्वे कंडक्ट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ में वो फंड्स लगाती है, क्योंकि बिकॉज कोई भी जब थर्ड पार्टी काम करेगी आपके लिए तो फ्री में काम नहीं करेगी, तो यानी कि वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि मेरा इन्वेस्टर, मेरा जो कस्टमर है जिसको मैं सर्व करने जा रहा हूँ, उसका पर्पस जो है वो मीट करना चाहिए, उसका पर्पस जो है वो सॉल्व होना चाहिए। जब तक उसका पर्पस सॉल्व नहीं होगा, तो फिर मेरे उसके लिए बिल्कुल ही सर्वे रिपोर्ट जो हो जाएगी वो यूजलेस हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें स्टेज 1 क्या होती है कि एक स्पेसिफिक डिमांड होती है जो कि मेड बना दी जाती है। क्लियर इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन इन टर्म्स ऑफ अ प्रेफरेंस, tell what you required. This is the first stage where the purpose is being clearly defined by the organization, what they want out of their survey. Okay, then stage 2. In the stage 2, we will see for whom you are going to write down the report. Whether you are going to write down the report for your immediate boss, are you going to write down the report for to be circulation as a journal, you want to what sort of a audience you are going to cater, it is very important. Because if I'm going to write down for my seniors, then I have to write it from a different way, for the colleagues then in a different way, for the different organization in that case, for the consumers. So it is very important in the second stage we recognize our audience, it is also very important. And the last stage and third stage, after once you know what is the objective, now you know that what audience you are going to cater, now these things are already done. Now it is very important, next step is to collection of the data, relevant information you have to collect. What are the sources from where you can collect this data? You can collect this data from the personal observation, from the interviews, from the questionnaires, from the official records, and from the libraries. So these are the different sources from where you can collect your data. Now, once you have collected your data, you are, now final step now you are arranging your survey report. For that, there is a certain defined format okay, that format has to be followed. That is something like that: first is front matter, then your title page,
preference, table of content, list of illustrations, and finally your summary. Okay, this is the first part. Second part is the body. Body is divided into the three parts: introduction, discussion, conclusion, and recommendation. And back of the matter, you will write down the list of reference, bibliography, appendix, and glossary. This is what is the format, you know. In the front matter, you will write the title page. Title page is the central theme. Title. What is the title? Title is the central theme. Then preface, we everywhere we see that there is a preface into it. Then table of contents, where chapter 1 includes this, chapter 3 includes this, like illustrations, like examples, list of illustrations like examples. Summary, the overall you're telling in a very short that what are you going to be present into the report. And then body. Body may you will come up with the whole thing, like what is the central idea, what are the supporting elements of the central ideas, and what is conclusion you are getting out of from all of that. And if you have some recommendations, so you also make those recommendations into it. The end of the report, you will come up, you see in every book there is a glossary, there is appendix, bibliography, list of references. So this is how you finally arrange your survey report. Is it clear to everybody? Yes, madam. Yes, ma'am. Any doubt? कोई भी डाउट है आप लोगों को तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे एंड से सारा सिलेबस कवर अप हो चुका है। मैम एक पेपर भी डिस्कस कर लेते हैं, जस्ट आप बताना इन शॉर्ट। बोलिए, शुरू कीजिए। मैम मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप एक एक करके बस इन शॉर्ट में बता देना कि कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए शेयर कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यस मैम। यस मैम, वेट। मैम मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, मैं ग्रुप में पीडीएफ डालूं? नहीं, फिर वो वही अरे रीड कर दो ना क्वेश्चन, इससे बेटर है रीड कर दो। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कंपोजिशन इन अबाउट 350 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 5 दे रखे हैं। फर्स्ट वन, द रोल ऑफ फ्रेंड्स इन आवर लिव्स। सेकंड वन, द इम्पोर्टेंस of reading. Third one, sports and health. And fourth one, environment pollution. इसमें कॉम्पोजिशन कैसे लिखते हैं सबको पता है? मैंने आप सब लोगों को बताया कॉम्पोजिशन कैसे लिखते हैं। कॉम्पोजिशन के अंदर आप जो है पैराग्राफ्स को रेलेवेंट आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो, है ना। ऑगमेंटेटिव वे में लिख सकते हो, इंडक्टिव वे में लिख सकते हो, डिडक्टिव वे में लिख सकते हो। सो मेनी वेज आर राइटिंग अ कॉम्पोजिशन, मैं बता चुकी हूँ पहले। तो आप में ये 4 टॉपिक आपके सामने है। अब इसके ऊपर आपको कॉम्पोजिशन लिखनी है। कॉम्पोजिशन आप ऑगमेंटेटिव वे में भी लिख सकते हो, आप उसको डिडक्टिव वे में लिख सकते हो, इंडक्टिव वे में लिख सकते हो, परसुएसिव वे में लिख सकते हो, सबमिसिव वे में लिख सकते हो, रैशनल वे में लिख सकते हो, इरेशनल वे में। कौन सा तरीका अच्छा लगे अपना लो। हो गया, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Write a paragraph in about 200 words on any one of the following. पैराग्राफ लिखना है। हॉलीडेज, पेरेंट्स, डिसिप्लिन इज द रोड ऑफ टू सक्सेस। फोर्थ वन, व्हाई शुड वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स। मैंने आपको बताया था पैराग्राफ लिखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसका सेंट्रल थीम, टाइटल आपको दिया ही हुआ है। अब उसको डेवलप कैसे करोगे? डेवलप करने के लिए कुछ रेलिवेंट एग्जांपल दोगे, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का ध्यान रखोगे, कोहेरेंस का ध्यान रखोगे, पैराग्राफ खत्म हो गया। हाँ तन्वी बोलो, हैंड रेज कर रहे हो आप, बोलो। क्वेश्चन है कोई तन्वी आपका? बोलिए। हर्ष, हाँ बोलिए हर्ष। भैया आप लोग हैंड रेज करते हैं फिर हैंड डाउन कर लेते, क्वेश्चन है तो कीजिए प्लीज। नेक्स्ट कर दे मैम।
हाँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा, बोलो तुम आगे बोलो। Third question. Write a letter to the editor of your local newspaper regarding the accumulation of garbage in your residential area. Outline the problem and offer solution. अभी आपने आपके एरिया में कुछ तो भी बहुत गंदगी जमा हो गई है, ठीक है, उसके बारे में बोल रहा है एडिटर, जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटर को लिखो, और उसको लिखो कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम का हम इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आप प्लीज जो है इस न्यूज़ को इस तरह से छापिए, ठीक है। बेसिक मुद्दा ये है। तो आप एडिटर, पहले तो आप अपना डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना एरिया डालेंगे, कहाँ से लेटर लिख रहे हैं, जिस एडिटर को लिख रहे हैं उसको वो करेंगे, सब्जेक्ट में क्या डालेंगे, प्रॉब्लम ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ गार्बेज। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि मैं इस एरिया में रहता हूँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, जिस वजह से मान लो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, ये म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, निकाल निकाल के जमा करते चले जाते हैं, वो सूख जाता है, कीड़े पैदा होते हैं, बीमारी पैदा होती है, बारिश वजह आ जाती है, लोगों को और दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने लिख दिए। फाइनली ये सॉल्यूशन हो सकता है कि अगर साथ के साथ में एमसीडी की गाड़ियां उसको उठाकर लेके चले जाए, या सूखा हुआ गीला हुआ अलग करके वो लोग साथ ले जाए। तो मतलब कुछ कुछ सॉल्यूशंस हम उसमें बता सकते हैं। इस तरह से हम लोग है राइटर लेटर को फ्रेम कर सकते हैं। Okay, ma'am. चलो काजल आगे चलो। Last question है बस एक. Read the following passage and make a note in an appreciate format. Give it a suitable title also. तो एक ये पैराग्राफ दिया आपको है. समरी का बस काम करना है, जो मैंने आपको बताया, ये समरी वाला काम है। समरी में अच्छे से उसको कीपिंग डिलीटिंग करके और पूरा टेक्स्ट बता के उसका, और पूरा वोकेबलरी एंड ऑल वो सब बता के अच्छे से सुंदर से तरीके से उसको बना दो, और उसको एक अच्छा सा टाइटल दे दो। जो भी तुम पढ़ोगे उसके हिसाब से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। जैसे मैं आपने बताया नोट मेकिंग कैसे लिखनी है, लाइक जी। सिंबल्स यूज करने, फ्लो चार्ट. हम्म तो एक टॉपिक लिखते हैं, फिर हम सब टाइटल लिखते हैं 1 से 1, फिर 1.1, 1.2, जस्ट लाइक. जी 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 जी, जस्ट लाइक दैट। और मैम एक मतलब 100 मार्क्स का मे भी है, तो हाँ जी। कितना लिखें इसमें? अब देखो क्वेश्चन तो कितना 4 लिखे नहीं, देखो अब क्वेश्चन तो तुम्हारे, देखो ये मत बोलो कि कितना लिखे। अब तुमने क्वेश्चन की वेटेज क्या 15 मार्क्स, 15 मार्क्स में उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बस कुछ भी कहानी लिख दी, बीच में गाने लिख दिए, कोई इधर का उधर की, इसकी टांग उसकी हाथ, ऐसा काम मत करो। अभी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तुम्हारे पास जितनी ज्यादा है। अब जैसे समरी है, समरी में मैंने अगर पहले ये 3 पार्ट बता दिए, कीपिंग डिलीटिंग पैराफ्रेजिंग बता दिया, तो अब मैं उसको अब मेरे को लगता है 15 तो मार्क्स इतने नहीं देगा मुझे, तो मैं टेक्स्ट के बारे में भी बता देती हूँ, वोकेबलरी के बारे में भी बता देती हूँ, रिपोर्टर के नोट के बारे में भी बता देती हूँ, फिर उसको मैं ऑर्गेनाइज के बारे में भी बता देती हूँ। अच्छा, इससे भी इसका पेट नहीं भर रहा है तो मैं एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ समरी का लिख के। अंडरस्टूड? मैंने इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब तो मेरे को 15 मार्क्स में 15 नहीं देगा तो कम से कम 10 तो देगा। हाँ, रिलेट होना चाहिए थोड़ा, और जो जितना मुझे पता है उसके बारे में उस सब कुछ. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ओके मैम. तो वाइंड अप करें सेशन को। तो मैं पहले आप लोग का स्क्रीनशॉट ले लूं, रुक जाओ, अभी भागने की जल्दी मत करो, रुको, मुझे अटेंडेंस मार्क करने दो। ठीक है, तो ठीक है, अटेंडेंस मैंने मार्क कर लिया है, और वाइंड अप करते हैं सेशन को इसी के साथ में। ठीक है, तो थैंक यू एवरीबॉडी, एंड डेफिनेटली मैं जो है ग्रुप में आप लोगों के नोट्स पीडीएफ बना के डाल दूँ। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम. ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। थैंक यू मैम। बाय. थैंक यू, बाय। बाय बाय।